टीम सेलेक्ट की है ना वो अच्छी नहीं की, मुझे एतराज है इस पे। तो जी मेरे ख्याल प्लीज। में होना ये चाहिए था कि आप ये बताते कि भाई जिन्ना का जो विजन था आज का पाकिस्तान क्या उसके मुताबिक है, और जो गांधी का विजन था क्या आज का इंडिया उस विजन के मुताबिक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं साथ डील कर लीजिएगा। जी जी साजिद साहब, ओवर टू यू। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू इस जी एस्पेक्ट को साजिद भी जी, obviously. ओवर टू यू। Okay जी, obviously Gandhi and Jinnah are two towering personality of India. और मेरा एक और इसमें रिक्वेस्ट है आपसे कि history is not going to be treated as a Bollywood or Hollywood movie. कि there is one hero, one villain, and hero had all qualities. So the historical narrative, the hero of one nation can be not necessarily the villain for others. So Gandhi and Jinnah both were established leaders. They served their respective community. They struggled against the colonialism, and they contributed from their perspective, from their side, ultimately facilitated the decolonization process and facilitated the independence of India. And to some extent, although it was Gandhian's ideal was the creation of independent state of India, and but he wanted united India. जी प्लीज एक जी जी क्लास हो रही 9:30 तक। सॉरी सॉरी शायद भाई इट्स उसी के। ओके। अच्छा खैर, तो उसमें बुनियादी तौर पे कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस फिर आइडियोलॉजी में, पर्सनालिटी में। ऑब्वियसली बोथ वर गुजरातीज, पहली कॉमनैलिटी। ऑब्वियसली दे वर मोर और लेस कंटेम्परेरीज। ठीक है। एक ही पार्ट टाइम है और एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट 48 was the last year for both leaders. So they were to some extent contemporaries. Both belongs to basically, even Gandhi belonged to the Vaish class. He was not a privileged Brahmanic class or Kshtri class. He belonged to the middle strata of the society. Even the Kathiawadi Gujarati family of Jinnah, they were basically middle businessmen. कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट टॉप क्लास elitist family से नहीं थे। न्यूज settlers थे। Gandhi's father served as a prime minister of small teeny states of Rajkot. So reasonable footings were available to both, and both were the product of the modern Western educational system, which was installed in India. They received their early education these Western educational institutions, and that was the extension of British civilization or modernization of India, and they were the product of that system. Later on, both explored the London for their law education, and they received law training and law education from that. And their stay at London obviously inspired them with the Western culture, Western civilization, Western institutions. Jinnah largely remained active in political arena at that time. He joined the campaign of Dadabhai Nauroji, and he even able to attend the different sittings of the House of Commons as well. So he developed a political taste from that period. Gandhi was largely remained engaged with vegetarian society, all these kind of the social activities. He was largely concerned with that aspect. Both ultimately returned back to their homes. Jinnah started a law practice, and initially at Karachi, later on he shifted at Bombay, and Bombay was at that time a cosmopolitan center of India. So Jinnah successfully established his practice, while Gandhi faced initial failures in his law profession. Although both ideal was Firoz Shah Mehta was the towering lawyer, leading lawyer of India at that time. He was a nationalist figure as well. On the other side, he was a influential lawyer as well, and he was roaring like lions. Jinnah entered into a professional relationship with Mehta law firm, while Gandhi
he admired Mehta. He wanted to become a lawyer like Mehta, but even he himself admitted that he was not failed to follow the Mehta's style. So Mehta was common source of inspiration at the initial stage of their professional careers, but Jinnah able to uh, follow the footsteps of Mehta, but Gandhi was unable. Gandhi admitted in his work, the autobiography, which was produced by Gandhi, and he admitted that during his first court appearance, his heart was sinking in his boots, and he was unable to utter a single word before when going to cross-examine evidence. Later on, he adopted a profession that he is going to write the petitions of the people. In that case, court appearance was not required. So there was a at earlier stage he was not a good public speaker. He failed to utter words, but later on he attracted the great crowds and he became a great crowd puller and inspired the generations of the Indian. But initial stages he faced problems. Later on, his brother advised him to explore a career in South Africa, and Muslim merchant required a British trained barrister to resolve their business disputes. So he sailed to South Africa, and South African experience largely transformed the Gandhis. Jinnah opted to stay in India. He able to flourish, able to establish a flourishing practice. He established himself as a lawyer. He developed expertise as well due to certain financial crunches. He performed as a magistrate for a certain period of time. Later on, he left that profession. So he operated as a lawyer, and on the other side, uh, to establishing after establishing himself as a successful lawyer, he ventured in politics. But Jinnah's entry into politics was in stark contrast to Gandhi. Gandhi entered in politics through South Africa. He became the champion of the Indians' right. And in case of Indians' right, basically, he was claiming rights of Indians from the white ruling elite. And he was not asking for equal rights for the black people. Obviously, in case of South Africa, uh, the British colonial masters adopted discriminatory laws or discriminatory policies against the local black population. But now Gandhi was pleading with the British authorities or colonial authorities that Indians are different from these black people. Indians must be treated middle and they had a right to vote, they had a right to business, they can own property, they had a right to free travel. Even they had a right. Even at first time when he was traveling in first class, he was kicked out from that first class compartment because the reason was that the colored persons were not allowed to travel in first class in South Africa. And there was a thrashing was happened and that वो जो थप्पड़ शप्पड़ पड़े और टिटता रहा स्टेशन पे that largely transformed his political career. In South African stay, Gandhi's पे भी खुश हो जाते हैं साजिद साहब. लेकिन obviously that was a transitional phase. तो personal inspiration largely transformed Gandhi's personality. वो shy, youthful leader largely transformed his attire, his ideals, and he decided to work for the protection of the rights of the Indians. And he decided that no more Indians are going to put such kind of the insults. तो वहाँ पे एक वो जो personal humiliation थी, personal insult थी, उसने उस personality को भी transform किया और ultimately उस community के साथ जो कुछ हो रहा था, वहाँ पे भी challenges आए. So he stayed there. He introduced a novel technique of non-violence, and he able to protest and he able to secure certain rights. But in most of the cases, he made compromises. Novel technique introduce करवाई, non-violence resistance की, लेकिन most of the time he failed to जो ideal set किए गए थे, जो goal set किए गए थे, he failed to achieve those. But on the other side, during his stay at Africa, his Indian identity gets sharp हुई है. But largely he maintained Gujarati attire, Gujarati language. Even the newspaper is going to publish that was in Gujarati language. Court में appearance पे Gujarati turban
पे उसे स्नैप किया, कोर्ट ने अलाउ नहीं किया. He insisted on wearing that turban. Later on, ultimately he abandoned that turban. But in public sphere, he adopted the Gujarati dress. Even when he came back to India, he normally used to wear Gujarati dress, Gujarati turban. He preferred to speak in Gujarati language. Even he came back, and during his stay, he was admired. Even the British officials admired the services of Gandhi for the uplift of the Indians who were working in South Africa. Even the Indian political leadership admired him, and he developed relationship with Gokhale especially, and many Surendranath Banerjee and many other moderate constitutional leader appreciated the Gandhians' effort. On the other side, with Jinnah able to develop his political career in India, obviously the available elite structures, Gandhi, Jinnah participated in those structures in 1909 when first opportunity was available to Jinnah. Although Jinnah criticized the adoption of the separate electorate by the even he strongly criticized that adoption, but Jinnah became the first beneficiary of that separate electorate when he got elected from Muslim constituency of Bombay. So जिन्ना की जो एंट्री है पॉलिटिक्स में वो एस्टैब्लिश मींस और एस्टैब्लिश चैनल्स के थ्रू है. एलीट नेटवर्किंग है, टॉप लेवल पे ऑपरेट कर रहा है और वहां से ही एंटर्ड इन द पॉलिटिकल एरिना. दैट वाज द नॉर्मल प्रोसेस इन इंडियन के एलीट इज कोलैबोरेटिंग, एलीट सोशलाइजेशन है, टॉप के लॉयर है और उस एलीट नेटवर्किंग थ्रू ही एंटर्ड इन पॉलिटिकल एरिना. And but he remained strong Indian nationalist at that time. Gandhi came back. Gandhi tried to enter in Indian political system. Although he was the great admirer of Gokhale, Gokhale recognized the abilities of Gandhi, but Gokhale advised him. और गोखले से जब फर्स्ट मीटिंग हुई गांधी की, उसने कहा जी आपके जो व्यूज हैं, गोखले वाज द मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट. He believes in constitutional development through implemented advances. On the other side, he was a strong supporter of the modernization. Gandhi was a strong critic of Hind Swaraj book was published by Gandhi, and he strongly criticized modern Western civilization. He was against the industrialization. He was in the favor of the traditional economy, ancient system was going to be restored. वो गांधी के खासे views इस मामले में खासे critical views थे. So गोखले ने एडवाइस किया कि आप पहले इंडिया में स्टे करें, साइलेंटली ऑब्जर्व करें, चीजों को समझे. और मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द व्यूज यू रिटेन they you are going to revisit all these views after staying in India for at least 1 year. Immediately गोखले died. जनवरी में गांधी आया, फरवरी में गोखले की डेथ होगी. वो एक मेंटोर जो अवेलेबल था गांधी को, and even he was the और दोनों में गोखले कॉमन लिंक भी. Jinnah wanted to become a Muslim Gokhale, moderate constitutionalist, and he worked with Gokhale, Dadabhai Nauroji, Surendranath Banerjee. Gokhale were the three, and Firoz Mehta was the fourth figure, जिनसे Jinnah inspired था. और so same was the case with Gandhi. To some extent, he was inspired from Gokhale, and but there was an ideological difference. Servant of India Society was the society which was working for the modernization or promotion of the modern education in India. That society was led by Gokhale. Gandhi wanted to become the member of that society, but that society refused entry to Gandhi. कि आपके और हमारी आइडियोलॉजी में मैच नहीं है, मिसमैच है. So Congress even wanted to join Congress. Congress ने कहा okay जी, we had a position in Congress office, you can serve there. कुछ ड्राफ्टिंग करनी होगी, करस्पॉन्डेंस करनी होगी, वी कैन ऑफर यू दैट पोजीशन. ऑब्वियसली वो उस पे नहीं था. लेटर ऑन Jinnah welcomed Gandhi. Jinnah appreciated the Gandhi, even his first speech in 1909 at Flora. He extended support to Gandhians' effort in South Africa. He acknowledged his struggle and appreciated his effort. Even harsh exchange of words were exchanged with Minto, who was presiding that session, on the selection of these certain words regarding the policies in South Africa. So वहीं से Jinnah got fame from that controversy or harsh exchange of words between Minto and Jinnah.
Jinnah was comparatively young, new entrant in legislative house, and he challenged the most powerful person of India at that time, Lord Minto. So that attracted एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और कंट्रोवर्सीज आपको बताया कि पॉपुलैरिटीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती। अच्छा, गांधी later on entered in political arena, but Gandhi's entry was slightly different. वो paraphrase से आया है। Initially leaders in paraphrase, leaders of masses, and then he captured the central stage. तो इसमें डिफरेंस है। अच्छा, फिर दूसरी स्टेज पे एक और एस्पेक्ट जो दोनों में कुछ कॉमनैलिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। बोथ वर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट इन ट्रेडिशनल ग्रैब, he believes in democracy, believes in rights, believes in constitutionalism, and but he was largely criticizing Western civilization. Jinnah was a strict constitutionalist bent of mind. Gandhi believed in mass mobilization, agitational politics, but non-agitational politics. Jinnah initially believes in politics within constitutional limits and legislative houses through dialogue, through negotiation, through concessions. He was in the favor of the constitutional development or constitutional advance in India. तो इसमें दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं पे कॉमनैलिटीज हैं। एजेंडाज में भी इंडिपेंडेंट इंडियन नेशनल हैं, autonomy, independence of India, stop of the exploitation of the Indian resources were the common agenda. लेकिन they were working in different directions. Initially, जब Gandhi wanted to mobilize masses, Jinnah strongly criticized that strategy. That Jinnah had feared that mob hysteria is going to create anarchy in India. That is not going to serve the purpose and interest. Ultimately, Nagpur Congress, when Jinnah differed, although most of the Indian leaders who had difference of opinion with Gandhi, Motilal Nehru, C.R. Das, they had difference of opinion with Gandhi, but they admitted, they accepted Gandhi's dictation at Nagpur Congress. Nagpur Congress basically transformed largely the Indian politics. Gandhi assumed the leadership of Khilafat movement, even Jinnah was not ready to. Although Jinnah extended support to Khilafat cause, he visited London for Khilafat issue, but he never participated in public agitation or popular agitation. He never joined hands with these religious or ulama's class. तो इसमें डिफरेंसेस भी हैं और दोनों की स्ट्रगल एक खास डायरेक्शन में है. Ultimately, that struggle ultimately resulted. Obviously, certain people believes that there was a personality clash. No doubt there was a personality clash. वो ideological clash भी था, वो strategy का clash भी था. वो strategical जो option थे, those differed with each other. तो इन सारी चीजों ने contribute किया. Ultimately, that was a long journey. Gandhi mobilized the masses. Jinnah, even till 1930s, mid of 1930s, looking for constitutional solution of India's problem. Even at 1936-37 election, he wanted a joint platform for India's cause. But obviously, the Congress refused entry to Jinnah. Later on, Gandhi wanted to bring back Jinnah on common agenda or common platform during 1940s. But now Jinnah did a separatist path. Parting of the ways was referred as during 1930s when there was a differences of opinion emerged and Congress refused to accommodate Muslim League and Jinnah. Then he opted a separatist path. Both had a long history. Both extended cooperation at certain occasion, at certain episode. Both leaders extended support to British as a strategic move. Obviously, they wanted to pursue their respective political interests. तो इसमें दोनों sides पे ये cooperation extend किया गया है. Gandhi tried to maintain his ideological position despite of extending that cooperation. Jinnah obviously looking for political opportunities for. Obviously, Jinnah's political party was comparatively weaker political party. Obviously, during war situation, especially during Second World War, Jinnah availed that opportunity to further develop in political inroads in Indian condition. And
तीन बड़ी पावर्स है उनके दरमियान जो मुख्तलिफ स्टेज पे. The last phase of Gandhi, although Jinnah was dubbed referred as a communalist. साजिद साहब जी साजिद साहब काइंडली अब कंक्लूड करें, उसके बाद क्वेश्चन. ये जो लास्ट फेज ऑफ गांधी है, गांधी raised above the political differences. He tried to become the leader of all Indians. He declared that he's going to stay in India and Pakistan, and when he was not ready to participate in the independence celebrations, he stayed at Calcutta. वहाँ पे उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को झंडा लहराया. लेटर ऑन कुरान, गीता और बाइबल की शिप्स स्टार्ट की. ही डेवलप्ड डिफरेंसेस विद कांग्रेस लीडरशिप एंड ही इवन वो जो फेज है दैट वाज द फाइनेस्ट आवर्स ऑफ गांधीयंस लाइफ, जिसमें ही रेज अबव दीज कम्युनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटीज. तो ये कैरियर है जिन्ना का जो फाइनल फेज है वो कम्युनलिस्ट और फाउंडर ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे है. लेकिन दोनों में वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस और बहुत सारी कॉमनैलिटीज और डिफरेंसेस हैं. ज्यादा हम बेहतर डिस्कशन आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते हुए कर सकेंगे. जी प्लीज. साहिब साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. तो क्वेश्चंस के लिए सेशन ओपन है. इसका तरीका ये होगा कि पार्टिसिपेंट जो हैं वो एक राउंड में हम एक पार्टिसिपेंट से एक क्वेश्चन ले लेंगे. सेकेंड राउंड में अगर टाइम हुआ, अपॉर्चुनिटी हुई, तो फिर आपको फॉलो अप क्वेश्चन आप बाद में कर सकेंगे. तो प्लीज क्वेश्चन कीजिए. आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन डायरेक्टली भी कर सकते हैं. जी इरम आप यू आर रेजिंग हैंड. जी इरम पूछिए. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम गांधी जी और कायदे आजम का कंपैरिजन करते हैं तो मेरी जितनी स्टडी है मुझे लगता है कि गांधी जी को ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका से खास मकासद के लिए लाया गया था. जैसे लखनऊ पैक्ट के बाद जो है वो खिलाफत मूवमेंट जो चली, तो उसमें जो है गांधी जी जो है वो लाए गए और उसमें उन्होंने भी शिरकत की. तो ये सारा किसी खास प्लानिंग के तहत नहीं हुआ था क्या? जी खैर ये जो है ना कॉन्स्पिरेसी मॉडल के लीडरशिप वाज ब्रॉट फॉर सर्टेन पर्पसेस के obviously initially Gandhi served as a recruiting agent for the British war campaign. He offered his services, but while he was serving as a recruiting agent for the British army, and that was not a successful campaign by Gandhi. Most of the Indian leaders, even the Tilak, बड़ा strong critic है, extremist का leader है. He was ready to he sent a check of 50,000 rupees to Gandhi कि आप जी वार फंड में जो वायसराय ने एस्टेब्लिश किया था उसमें कंट्रीब्यूट करें, और साथ में ही वाज रेडी टू प्रोवाइड 5,000 सोल्जर्स, महाराष्ट्रियन सोल्जर्स. लेकिन उसमें कंडीशन थी कि जी इनको लेटर ऑन इंडक्ट कर लिया जाएगा. तो ये वॉर एफर्ट में वो है कि उसमें किया जाए, तो वो तो नहीं शायद वॉर के टाइम पे फैसिलिटी. जहां तक है कि लॉन्ग टर्म में गांधी सूटेड द ब्रिटिश सिस्टम. ऑब्वियसली ब्रिटिश सिस्टम जो इससे पहले मौजूद था वो कोऑपरेशन बेस्ड था, कोलैबोरेटर्स ऑफ राज, लॉयलिस्ट ऑफ राज. They were operating in politics. Politics was the exclusive domain of the elite class. They were debating, they were held meetings. वो 3 दिन का तमाशा कहा जाता था कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सेशंस को, which were normally going to be held in the Christmas week of the year. और उसमें शान में कसीदे भी पढ़े जाते थे, पिटीशन सीकर थे, सारे कंसेशंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे. All these moderate constitutionalists, even extremists जो है, they were working within the system. कोई सिस्टम से बाहर जाके ब्रिटिश को मिलिटरली चैलेंज नहीं कर रहा था. ब्रिटिश ने जो सिस्टम प्रोवाइड किया था उसी सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हुए हर कोई अपने अपने एंगल से अपने अपने एस्पेक्ट से स्ट्रगल कर रहा था. They were asking for home rule, they were asking for self government, but British were responding the Indians demand. उसमें गैप था. जो इंडियंस की राइजिंग रेवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन था, दैट वाज बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे. ब्रिटिश वर
सर्टेन कंसेशन, जैसे उन्होंने 1919 के एक्ट में रिस्पॉन्ड किया इंडियंस की डिमांड्स को, इंडियंस वर आस्किंग फॉर सेल्फ रूल, दे इंट्रोड्यूस्ड डायरकी सिस्टम एट द प्रोविंशियल लेवल। ओके, इंडियन सर्टेन इंडियन मिनिस्टर कैन एक्सरसाइज पावर एंड अथॉरिटी बट एट प्रोविंशियल स्फीयर। उसमें भी उनकी ड्यूअल स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने प्रोविंशियलाइज कर दिया पॉलिटिक्स को, सेंटर ऑफ पावर वर क्रिएटेड इन प्रोविंसेस, कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, नेशनल स्ट्रगल है, उसको डिफ्यूज किया जाए। दूसरी स्टेज पे जो गांधीयन स्ट्रेटजी है, गांधीयन स्ट्रेटजी बेसिकली मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की जो स्ट्रगल थी, दे हैड दैट फेल्ड टू प्रोड्यूस रिजल्ट। देयर वाज अ रेवोल्यूशन ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशन, देयर वर मोर ग्रेजुएट्स अवेलेबल इन इंडिया, दे वर लुकिंग फॉर जॉब्स। ब्रिटिश इंपीरियल स्टेट फेल्ड टू प्रोवाइड जॉब्स टू देम। वो डिप्टी नजीर अहमद का कोई शेर भी है कि इतना मुझे भगाया जॉब की, मुझे शेर एक्चुअली नहीं आता, लेकिन उसका क्रक्स ये है कि धोती कर दिया पतलून को, कि इंडियन यंग ग्रेजुएट्स वर डेस्परेट एंड दे वर लुकिंग फॉर जॉब्स। उर्दू वाला कोई होगा तो वो मुझे उसमें करेक्ट भी कर देगा, तो लेकिन डेस्परेशन वाज देयर, दे वर लुकिंग फॉर मोर रिप्रेजेंटेटिव avenues. British authorities failed to respond. Obviously, British authorities were there to protect the imperial interest. On the other side, the whole British structure was based on cooperation and collaboration of the Indians. Basic the foundations thing, Gandhi basically shaken the very foundation of the British structure, imperial structure. Tolstoy recommended, Tolstoy, he inspired with Tolstoy, and Tolstoy recommended that any tyrannical government can be destroyed through non-payment of the taxes, through withdrawal of the cooperation. If you are going to disobey the laws, obviously no state is going to remain intact. So that model was adopted by Gandhi. Non-cooperation movement की जो 4 stages हैं कि Indians are not going to pay taxes, they are not going to cooperate with the British authority, they are not going to be recruited in police and army, they are not going to attend their schools, colleges and education. तो इसमें सवाल करने वाला एलिमेंट कम हो जाता है, क्योंकि वो उसकी फाउंडेशंस को ही चैलेंज कर रहा है, एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स ऑफर कर रहा है दैट अल्टीमेटली गोइंग टू सर्व द इंडियंस इंटरेस्ट। तो ब्रिटिश के इंटरेस्ट को तो सर्व नहीं हो रहा। मिलिटेंसी का कोई थ्रेट ब्रिटिश को यहाँ पे अवेलेबल है, दे वर द विनर ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अगर कोई मिलिटेंट चैलेंज आता भी इंडियन साइड से, ऑब्वियसली 2 किस्म की चैलेंज हो सकती है ना सर, या पॉलिटिकल स्ट्रगल के थ्रू, दैट वाज अ स्टेप बाय स्टेप इट वाज, और दूसरा स्टेज था मिलिटरीली चैलेंज कर ले। 1857 में चैलेंज किया, लेसन था कि नहीं कर सकते। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में शायद आप ब्रिटिश अथॉरिटी को मिलिटरीली चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई एजेंडा था गांधी को इंस्टॉल करके। बट गांधी एक चीज थी कि गांधी स्टेटस को मेंटेन करना चाहता था, ये एक रियलिटी है। बहुत सारी गांधी मूवमेंट सस्पेंड हुई हैं, ग्रेजुअली उसने डेवलप किया है और पीसफुल ट्रांजिशन करवाई है इंडिया में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साजिद साहब, मैं एक जुमला ऐड करना चाह रहा था। प्लीज सर। ये जो पैसिव रेजिस्टेंस की जो स्ट्रेटजी थी, गांधीइज्म जिसको हम कह लें, अगर आप अलाउ करें तो, इसमें आपकी अथॉरिटी है। अथॉरिटी नहीं है सर। इसको हमने बड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, लगता है हमने बड़ा अच्छा प्रैक्टिस किया है पैसिव रेजिस्टेंस को। मतलब ये है कि भाई आप पैसिव हो जाए, कोऑपरेट ना करें, मतलब इट इज इनफ टू फेल एनी इनिशिएटिव, एनी इंस्टीट्यूशन। तो हमने बड़ा अच्छा इसको एक्सरसाइज किया। मेरा आपका बैकग्राउंड जिस डिपार्टमेंट से है, जी, मतलब हमने बड़ा अच्छा सीखा है इसको। ये ऐसे ही मैं जरा उसको साथ रिलेट कर रहा हूँ, मतलब आपकी जी मैं उठा हमारी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग सिस्टम चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? कोई समवन रेजिंग हैंड। जी पूछिए। जी शहाब बेटा पूछिए। साजिद साहब, ये शहाब मेरा स्टूडेंट है कायद से। अच्छा। जी शहाब पूछिए। अस्सलाम वालेकुम शहाब। सर मेरा जो सवाल है वो इस तरह से है कि जैसे कि आपने कहा कि गांधी का एट लास्ट मतलब वहाँ की कांग्रेस के साथ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, तो सर
क्या इंडिया की जो बेस है वो गांधी की जो आइडियोलॉजी से डिफरेंट बनी है? और यही चीज जो है वो हमें पाकिस्तान के बारे में भी दिखाई देती है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह मतलब अपने स्पीचेस के अंदर कहा था, और जिस तरह मतलब उन्होंने उनकी हमें पता चलता है कि उन्होंने जिस तरह कहा था उससे डिफरेंस है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि गांधी और जिन्ना ने जो मुल्क बनाए, उन दोनों ममालिक की जो बेसिस हैं वो उनकी आइडियोलॉजी से या फिर उनकी जो बिलीफ था कि इस तरह से होना चाहिए था उससे डिफरेंट बना है? जी ऑब्वियसली आप यकीनन कह सकते हैं इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया बिलोंग्स टू नेहरूज, वो गांधीयन इंडिया नहीं है। गांधीयन इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम नेहरूज इंडिया. Nehru and Patel largely assumed the leadership in final phase. They were able negotiators and they wanted to retain India on modernization path. गांधी का जो बेटा सबसे बड़ा शाप जो इशू था ना कि वो ही वाज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, विलेज इकोनॉमी पे बिलीव करता था, सस्टेनेबल वो कहता एंशिएंट इंडिया में लोकली सस्टेन्ड विलेजेस वर देयर, वो लोकली मैनेज कर रहे थे. ये जो स्पिनिंग व्हील वाज इंट्रोड्यूस, खाड़ी वाज इंट्रोड्यूस, वो बेसिकली इवन ही वाज अगेंस्ट द मॉडर्न एजुकेशन, मेडिकल साइंसेस को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता था. तो उसके बहुत सारे जो व्यूज थे, ये जो मॉडर्नाइजेशन का एजेंडा था, या मॉडर्न एजुकेशन थी, मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, वो उसके एंटीथेसिस. although he enjoyed very good relationship with the industrialists of India. He first established his ashram at Sabarmati near Ahmedabad, और इसलिए क्या उसने कहा यहाँ पे खासे wealthy businessmen हैं, they are going to sponsor us, they are going to provide us donations. Last times पे Birla House was the resident of Gandhi. He was staying with Birlas, the leading industrialist and businessman. And he, throughout his political career, he enjoyed very good friendly relationship most of the industrialists and businessmen. लेकिन on the other side, वो criticize करता था. वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को समझता था कि इससे वो जो ज़ाहिर है गांधी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी था गांधी का, और उसमें गांधी के व्यूज यूटोपियन व्यूज थे, कोई प्रैग्मेटिक व्यूज नहीं थे. और सो जो प्रेजेंट डे गांधी का है इंडिया जो है, वो ऑब्वियसली गांधीयन आइडियल्स, गांधीयन मॉडल से खासा डिफरेंट है. वो नेहरू के आइडियल्स, नेहरू के मॉडल से ज्यादा क्लोज है. एंड टू सम एक्सटेंट दैट वाज द प्रेजेंट इंडिया इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम और इंपीरियल स्ट्रक्चर. जो रिफॉर्म्स, ये चीजें इंट्रोड्यूस करें, उनको इंडियनाइजेशन के प्रोसेस से गुजार लिया गया है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स एबल टू सस्टेन इन इंडिया. सेम इज द केस विद पाकिस्तान. जिन्ना ऑब्वियसली जो यहाँ पे पावर स्ट्रक्चर, जो पावर एलीट क्रिएट की गई थी, Jinnah was exception from among that elite. They accepted Jinnah as their leader. लेकिन उनमें ना वो सेम क्लास थी, ना आइडियोलॉजिकली वो दे वर ऑन द सेम लेंथ, ना Jinnah को जो पॉलिटिकल विजन या जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट थिंग. ये जो लोकल लेवल और लोकल इन्फ्लुएंशियल थी, पावर हंग्री, पावर स्ट्रक्चर के अंदर लीड करने वाले, और जो पावर स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट करने वाले लीड, दे वर एसेंशियली इन political arena to capture power. जिन्हों को मैं कोई एक्सेप्शन नहीं इस मामले में कह रहा, लेकिन वो that was a different person comparatively, more westernized, वेस्टर्न मॉडल्स पे वो ज्यादातर चीजों को करना चाहता था. यहाँ पे ये मिनिस्ट्रियल पोजीशंस, अपॉर्चुनिटीज और नेपोटिज्म और ऑल दीज थिंग्स, तो लिहाजा बहुत सारी चीजों में खासा डिफरेंस है. प्रेजेंट डे इंडिया का और प्रेजेंट डे पाकिस्तान का, इसमें से दोनों लीडरशिप के विजन शायद रिफ्लेक्ट नहीं करते. जी जी शहाब, पहले किसी और को देखते हैं, किसी और का सवाल हो तो. जी अरशद वारसी साहब. अरशद वारसी साहब, मैं आपका थोड़ा सा तारुफ भी करवा दूं बाकी दोस्तों से. साजिद साहब, अरशद वारसी साहब एक कोर्स करवा रहे हैं आजकल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पे.
Excellent. तो वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो काफ़ी अच्छी इनकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी है। तो बाकी आप इनकी गुफ्तगू से नॉन भी वायलेंस कम्युनिकेशन को तो प्रमोट कर रहे हैं। जी जी प्लीज। जी अरशद बात प्लीज। जी मैं उस पैराए में जो है ना वो नॉन वायलेंस के ऊपर नहीं जाऊंगा जो गांधी का फलसफा है, लेकिन क्वेश्चन सही हमें भी दो क्वेश्चन है। बिल्कुल, जी प्लीज। एक क्वेश्चन ये है कि जब गांधी ने जो है वो एज अ नेशन यानी कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को एज अ नेशन लेकर और उस स्ट्रगल की तरफ बढ़े कि हमें जो है वो अगयार से या जो ब्रिटिश है उनसे जान छुड़ानी चाहिए और यहाँ पे एक लोकल जो है वो पावर स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें कायदे आज़म का रोल कि कायदे आज़म ने कहा कि ठीक है हम इसको फिर एक की बजाय दो नेशंस में लेते हैं, ठीक है, और एक नेशन को मैं लीड करता हूँ। तो आप इसको कैसे देखते हैं इन लीडरशिप पर्सपेक्टिव में ना, कि लीडरशिप पर्सपेक्टिव में एक जो है वो एज अ होल देख रहा है और एक जो है वो अपनी लीडरशिप को जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए और या कैश करने के लिए या जो भी आप बेहतर बता सकते हैं उसमें इस फिलॉसफी को किस तरह से इंडल्ज किया गया। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आज भी हम यही बात करते हैं कि जी कायदे आज़म का पाकिस्तान, कायदे आज़म का पाकिस्तान। तो हम ये बात क्यों करते हैं? जब हम ये बात समझते हैं, हमारा जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो सोशल साइंटिस्ट है, वो दोनों ये बात समझता है कि जो किसी भी माशरे की इलीट क्लास होती है बेसिकली उसकी आइडियोलॉजी, उसका फिनोमेना और वो ही माशरे के अंदर प्रिवेल करता है और माशरा उसी पर बेस करता है। तो हम इस अवाम को साथ साथ लेकर क्यों चलते रहते हैं? तो ये दो क्वेश्चन थे। अच्छा खैर, जो एक तो जो ऑब्वियसली नेशनलिज्म वाज अ यूरोसेंट्रिक आइडिया, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनलिज्म वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। वो जो ब्रिटिश सिविलाइजिंग मिशन था, दे आर गोइंग टू सिविलाइज इंडियंस, उसी की बाई प्रोडक्ट नेशनलिस्ट आइडेंटिटी वाज adopted by the Indians new leadership, और जो भी न्यू मॉडर्निस्ट एजुकेशन की प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के तौर पे उन्होंने नेशनल आइडेंटिटी को अडॉप्ट किया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू की बायोग्राफिकल स्केच भी है, एक तरह से इंडिया का भी बायोग्राफ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया टाइटल खुद सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया, वो उसमें नेहरू बेसिकली ट्राई टू एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनलिस्ट आइडेंटिटी एकेडमिक डिस्कोर्स में। तो डिस्कवरी मींस के आइडेंटिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड देयर, दैट वाज अ न्यू कंस्ट्रक्ट। ये जो नेशनलिज्म का कंस्ट्रक्ट है, ये नेशनलिस्ट आइडेंटिटी है, न्यू कंस्ट्रक्ट था। ये आइडेंटिटी इंडिया पे जब हमने यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश की, उसके हिस्टोरिकल रूट्स को भी ट्रेस आउट करने की, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी वाज अवेलेबल इन चोका पीरियड, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी वाज अवेलेबल इन अकबर पीरियड। लेकिन इंडिया का जो है ना रियलिटी, दैट वाज द डाइवर्सिटी इन इंडिया, linguistic, cultural, racial, religious. There are many kind of the diversities were there. Uh, so obviously, the British able to maintain a central authority, central government, they able to maintain a uniform system. But again, in British system, there were many diversities were there. Provinces were regulated. Provinces were controlled through different system of the governors, and or usme princely 1/3 India was a princely India. Obviously that is going to be regulated differently. तो वन नेशन का कॉन्सेप्ट तो ग्राउंड पे एज सच अवेलेबल नहीं था। पॉलिटिकल रियलिटी के तौर पे, एक सिस्टम के तौर पे ब्रिटिश इंपीरियल अथॉरिटी की प्रेजेंस के साथ उसको रिलेट किया जा सकता है। ऑन द अदर साइड इंडियंस, मोस्ट ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट, दे ट्राई टू क्रिएट अ नेशनल आइडेंटिटी। वो इंडियन पेट्रोल अर्ली एसोसिएशन हैं, चाहे 1830 से ऑनवर्ड, राजा राम मोहन राय से ऑनवर्ड आप कर सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, Indian National Congress itself was an expression of इंडियन आइडेंटिटी के इंडिया ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है। तो नेशनलिज्म का कंस्ट्रक्ट तो था। जिन्ना की जहां तक बात है, जिन्ना वाज अ स्ट्रांग इंडियन नेशनलिस्ट at early stage of his career. To some extent he remained confused till mid of 1930s कि वो उसकी इंडियन नेशनलिस्ट आइडेंटिटी ज्यादा मैटर करती है कि एज ए मुस्लिम नेशनलिस्ट आइडेंटिटी। ऑब्वियसली Muslims were underdeveloped, marginalized, backward community, and on the other side, when Nagpur session was happened, Jinnah developed differences with Gandhian style of leadership, and he left Congress. He was one of the most influential leaders of India. Even at later on stages, when there was a confusion
chaos was there after the suspension of Gandhi movement. Jinnah again tried to reassert his position. But वो दूसरी स्टेज पे, पहली स्टेज पे मॉडल ये था कंसेशन सी कर लो, प्रोटेक्शंस ले लो, दैट इज गोइंग टू सर्व द मुस्लिम्स cause. Obviously, religious identity was there. On the basis of religious identity, वो चाहे ब्रिटिश इंस्टॉल्ड रिलीजियस आइडेंटिटी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट और ऑल दीज थिंग्स वर इंट्रोड्यूस, डिवाइड एंड रूल की थ्योरी के अंडर वो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था, बट सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी वाज देयर, दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कांग्रेस इवन इन एट लखनऊ पैक्ट, के जहाँ पे दे recognized Muslim League as a representative party of the Muslims. 1/3 seats allocate कर दी, separate electorate को criticize करने वालों ने 1/3 seats allocate कर दी. वो system जो था accommodation का, concession का, वो collapse कर गया अगली stage पे जाके. नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में under the pressure of Hindu Mahasabha, representation is going to be reduced. और फिर थ्रेट था कि मेजॉरिटेरियन प्रिंसिपल में व्हेन हिंदूज आर गोइंग टू रूल दे आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट दी. इंडियंस की कंटेंशन ये थी कि ओके जी मेजॉरिटेरियन प्रिंसिपल है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये जो नया सिस्टम था दैट इज नॉट गोइंग टू सूट दी मुस्लिम्स इंटरेस्ट. उसमें ऑब्वियसली मेरिटोक्रेसी अगर होगी तो ज्यादा जॉब्स नहीं मिलेंगी. हिंदूज वर मोर एडवांस, मोर डेवलप्ड कम्युनिटी, बिजनेस की फेयर अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर दी जाए. हिंदू कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन आर गोइंग टू बी डोमिनेट. अगर फेयर रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया जाए, हिंदूज आर गोइंग टू बिकम द रूल एट सेंटर. They were in the favor of strong center. Strong center is going to eliminate the provincial autonomies and authorities. तो वो conflicting interest थे मुस्लिम elite के, मुस्लिम educated classes के, मुस्लिम business class के, और जिन्ना exploited those differences and ultimately he emerged as the leader. तो एक तो assertion of leadership में वो जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैं, वो चाहे पॉलिटिकल इकोनॉमिक है, और रिलीजियस इडियम्स और सिंबल्स यूज किए गए रिलीजन के नाम पे. उस वो जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाज क्रिएटेड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन. अंडरलाइंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल इंटरेस्ट थे. तो एक तो जी मेरा उसमें ये है कि जो सेपरेट नेशन है वो खैर पाकिस्तान इमर्ज एज दी लार्जेस्ट स्टेट. इस वक्त अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉपुलेशन को इकट्ठा कर वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टेट्स बन जाएगी. वो इतनी छोटी सी वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट वाज इमर्ज एट दैट टाइम. तो अगर 200 नेशंस के राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, तो इतने बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन को जो कि अंडर डेवलप है, मार्जिनलाइज है और इन कंपटीशन है डेवलप और एडवांस कम्युनिटी के साथ, तो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज ने इन मोस्ट ऑफ द केसेस अडॉप्टेड सेपरेटिस्ट पाथ. वो एक नेचुरल रिएक्शन है. जिन्ना एक्सप्लॉइटेड दैट सिचुएशन इन हिज फेवर और रिलीजियस रेटोरिक और रिलीजियस आइडेंटिटी के थ्रू कॉमन मैन को मोबिलाइज कर दिया और उससे ज़ाहिर है एक सपोर्ट बेस क्रिएट की और उसको एक्सप्लॉइट करके सेपरेट स्टेट पॉपुलर मैंडेट के थ्रू ही क्रिएट हुई है ना. 45-46 में द पीपल वोटेड फॉर मुस्लिम लीग एंड मुस्लिम लीग contested that election on the agenda of Pakistan. तो पॉपुलर लेजिटिमेसी इसमें भी क्रिएट की गई है. वो चाहे आप उस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं. सॉरी वैसे सब मैंने आपका दूसरा जो पोर्शन है ना क्वेश्चन का वो मैं कंफ्यूज कर चुका हूँ, रिपीट कर. जी दूसरा ये था कि हम जब आप आज बात करते हैं कि जी जिन्ना का पाकिस्तान, तो आपके ख्याल से ये जो नारा है ये कितनी पॉपुलैरिटी हासिल कर सकता है, या क्यों हम इस आइडियोलॉजी के साथ चलने के लिए अभी भी जो है वो उसकी तरफ सोचते हैं, देखते हैं. जिन्ना के पाकिस्तान को एक्सप्लेन करना खासा मुश्किल काम है बासी साहब. ठीक है, जिन्ना का अपना जो लाइफस्टाइल है वो जिस तरह के वेस्टर्नाइज थे, तो उसको रिलेट करना और फिर कंट्राडिक्शंस हैं. फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ही यूज्ड रिलीजियस इडियम्स एंड सिंबल्स. आप डिनाई तो नहीं कर सकते ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्लिम है तो लीग में और मेनी रिलीजियस इडियम्स एंड सिंबल्स वर यूज्ड. तो पर्सनल लाइफस्टाइल में और जो रेटोरिक आप क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली उस मैसेज को किस तरह से डिसेमिनेट किया गया, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में कैसे यूज किया गया, वो खासे डिफरेंसेस हैं. मेनी कंट्राडिक्शंस आर देयर.
तो जिन्ना का पाकिस्तान एक तो, क्योंकि हर कोई जिन्ना को अपनी तरीके से इंटरव्यू, किसी के लिए कहता था मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हैं, किसी के लिए मिस्टर जिन्ना हैं, तो जिन्ना के खासे फेसेस हमने क्रिएट कर लिए हैं, हर एक ने अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जिन्ना को पोर्ट्रे, जिन्ना का पाकिस्तान भी खासा मेरे को कंफ्यूज पाकिस्तान होगा, तो उसमें कोई एक सिंगल डायरेक्शन शायद अवेलेबल ना हो। हाँ, लेकिन स्लोगन के तौर पे अच्छा है, फाउंडर ऑफ द नेशन है, फाउंडर्स को इस तरह की स्टीम शायद दी जा सकती होती है। जी प्लीज। जी, और कोई सवाल? किसी दोस्त का कोई और सवाल? शफीक साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी शफीक साहब। जी शफीक साहब। शफीक साहब अनम्यूट करें अपना, माइक आपका बंद है इसलिए आवाज नहीं आ रही। जी सॉरी, बस सर कमेंट ही है, और ये सिर्फ मेरा जाती जो ख्याल है उस हवाले से है, जैसे मैं चीज़ों को समझता हूँ, उसमें जाहिर है कि आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं। ये जो इस्लाम की डेफिनेशन हमारे यहाँ पाकिस्तान में 80s के बाद हुई है ना, इसकी वजह से हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आती है कि जिन्ना का पाकिस्तान और रिलीजियस रेटरिक जो हैं वो डिफरेंट थे। 80 से पहले जो हमारा पाकिस्तान था उसमें तो इस्लाम जो था बिल्कुल वैसे ही लिबरल था जैसे होना चाहिए। अगेन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी उस पाकिस्तान में थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ शफीक साहब, उस जमाने में 80 जब से मुहर्रम पहले का जुलूस पाकिस्तान निकलता वैसे ही था, लिबरल थे जैसे जिन्ना लिबरल थे जी, तो किसी को इस बात पे प्रॉब्लम नहीं होती थी कि जनाब ये जो है ना ये खुदा ना खास्ता काफरों का जुलूस है। ये जो इंटरप्रिटेशन आई है ये 80s के बाद की है, एक खास सेक्ट की इन्वेस्टमेंट की वजह से, वरना मुसलमानों में और अभी भी हमारे जो गांव हैं वहां पे जो खवातीन हैं गांव में खेतों में जाके काम करती हैं, किसी के इस्लाम को खतरा नहीं है। हर जो है मतलब तकरीबन दूसरा तीसरा घर जिसके पास मवेशी हैं उसने अपने मवेशियों के पास कुत्ते रखे हुए हैं, उनके घरों में जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं इस्लाम को खतरा 80s के बाद हुआ है सूट से या मॉडर्न लाइफस्टाइल से, इससे पहले तो सर था ही नहीं। तो जो जिन्ना का पाकिस्तान है, बल्कि जिन्ना ही नहीं, वो जो पूरी लीडरशिप थी, अगर आप उस लीडरशिप का लाइफस्टाइल देखें तो उनके इस्लाम पे किसी को कोई एतराज नहीं था और उन सब का लाइफस्टाइल मॉडर्न था। वो सारे अंग्रेजी जो बोलते थे, इलीट क्लास थी, गोरों के यहाँ जाते थे, इंग्लैंड में पढ़ते थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जो जिन्ना का पाकिस्तान है, अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी नई इंटरप्रिटेशंस आई हैं कि इस्लाम और लिबरलिज्म दो अलग-अलग चीज़ें हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इशू आया है हमारे यहाँ। वरना यकीन करें इस्लाम तो नाम ही लोगों को कंफर्टेबल और एक जिंदगी और मॉडर्न लाइफस्टाइल देने के हवाले से था। सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म करूँगा। यकीन करें अगर आप उस ज़माने की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे या उनके हवाले, उस ज़माने की आप जो मुसलमान औरत है, आप उसको सिर्फ उस पर्सपेक्टिव को और आज के पर्सपेक्टिव में देख के देखें कि उस औरत को अपना बिजनेस करने का हक था, उसको अगर खावंद पसंद नहीं है तो खुला लेने का हक था, उसका प्रॉपर्टी में हक था, उसको अपना स्कूल चलाने का हक था। तो सोचें क्या उस ज़माने में जो मगरब में रहने वाली औरत थी जिसके पास कोई जानवरों से बड़ा राइट नहीं था, क्या वो हमारे यहाँ जो खातून है उसको उसी तरह से नहीं देखती होगी जिस तरह आज सोमालिया या अफ्रीका या इन इलाकों में बैठी हुई खवातीन मगरिब वाली खवातीन को देखती हैं? तो मुझे ज़ाती तौर पे दुख ये होता है जब हम लोग इस्लाम को खुदा ना खास्ता लिबरलिज्म का ऑपोजिट कहते हैं। तो जिन्ना साहब के इस्लाम पे भी मुझे कोई वो नहीं है शक, और लिबरलिज्म और इस्लाम बिल्कुल साथ चल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये सारा कुछ मौजूद था, हमने वो जो
80s में एक खास वर्जन आया इस्लाम का, उसने उन चीज़ों को बहुत गडमड किया। वरना यकीन करें जिन्ना का पाकिस्तान बिल्कुल मॉडर्न ही होता, जिसमें इस्लाम भी होता और सारी चीज़ें लोगों को अपने जिंदा रहने का हक होता। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, दैट्स इट। शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनलाइटेंड कमेंट। और मेरा कंप्लीट एग्रीमेंट है शफीक साहब के इस कमेंट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शफीक साहब हम प्रोडक्ट जिया इराकी और शफीक साहब अमेरिका में बैठ के ये बातें कर रहे हैं। हाँ, हमारा जो ख्याल ब्रॉडअप रखिएगा। हुआ है वो जिया के पाकिस्तान में हुआ है, तो हम बहुत सारी वैल्यूज को और पर्सपेक्टिव्स को उस एंगल से भी अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं। और फिर हमें जो चैलेंज आता होता है वो जो क्लास प्रोटीन बन गई है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की, और वो ज़ाहिर है उसको एक खास पर्सपेक्टिव में, जो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि लिबरलिज्म, और उसको एक बाइनरी ऑपोजिशन के तौर पे पोर्ट्रे करके और वजनों को साइड पे ला के बहुत सारे सिलेक्टेड कोट्स को रेफर करके वो जनाब को अपनी साइड पे लोकेट करना चाहते हैं। उनके अपने पॉलिटिकल कैरियर के दौरान वो अपोज करते रहे, लेकिन अब वो अपनी साइड का जना खास किस्म को पोर्ट्रे करके वो कहते हैं जना हमारा है। ऐसे ही है। तो इसमें थोड़ा सा है हमें। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है। इरम दोबारा कुछ सर, सवाल करना चाह रही जी हैं, तो हम क्वेश्चन एक कमेंट कर सकता हूँ? जी जी वासी जी साहब, ये उसके बाद इरम कर दो। जी सर, वो जमीयत उलमा इस्लाम जो है, वो जो उसका इंडियन पार्ट है, वो कहते हैं जी कि हम जो है वो लिबरलिज्म को ला के रहेंगे, और यहाँ वाला जो पार्ट है वो कहते हैं जी हम मर जाएंगे, इसको नहीं लाने देंगे। और वो कहते हैं इंडिया की सर्वाइवल सेकुलरिज्म को मेंटेन करने में है। हमारे कहते हैं सेकुलरिज्म आ गया तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। अच्छा इरम, सॉरी, अगर आप इजाजत दें तो जफरुल्लाह शाहीन साहब से क्वेश्चन ले लें, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कोई, तो उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। जी जफर जी साहब। जरूर सर। थैंक यू। जी जफर अस्सलाम वालेकुम साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट। सवाल ये है कि जसवंत सिंह ने किताब लिखी थी जिन्ना इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। उसमें उसने जो नेहरू था उसको भी बहुत क्रिटिसिज्म किया और जिन्ना पे भी किया, और बाद में इसी किताब की वजह से बहुत कंट्रोवर्शियल बुक थी, उसको बीजेपी से मेरे ख्याल एक्सपेल भी कर दिया गया था। उसको पढ़ें तो ये थोड़ा सा इम्प्रेशन बनता है कि मिस्टर जिन्ना वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो वो उनको बहुत ज़्यादा हम ओवर प्ले करते हैं, तो वो एक एक्सीडेंटल लीडर के तौर पर इमर्ज होकर सामने आते हैं, क्योंकि जैसे हालात क्रिएट हो गए थे 1937 में, तो जो ऑल मुस्लिम लीग है वो इलेक्शन हार गई थी, तो ब्रिटिश ने तो छोड़ के जाना ही जाना था। तो ये जो मेकिंग ऑफ जिन्ना है, हम उसको जरूरत से ज्यादा पोर्ट्रे तो नहीं करते कहीं पे। अजी अच्छा, एक तो ऑब्वियसली जसवंत सिंह एक्सपेल कर दिया गया था बीजेपी से, लेकिन जो जसवंत सिंह का आर्गुमेंट था ना, इन लाइन विद बीजेपी जो आइडियोलॉजी है ना, दे आर द स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स ऑफ नेहरूज पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज। तो बीजेपी की ऑफिशियल स्टैंड एक्चुअली वही है, और जसवंत सिंह का आर्गुमेंट भी बेसिकली एक्सटेंशन थी बीजेपी की आर्गुमेंट की, कि जो नेहरूज वर रिस्पॉन्सिबल, दे अडॉप्टेड नॉन अकोमोडेशन पॉलिसी, जिन्ना वाज रेडी टू कोऑपरेट एट डिफरेंट स्टेजेस विद नेहरू। इन्होंने पुश किया जिन्ना को, और अल्टीमेटली जिन्ना वाज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, इवन ही सजेस्टेड अमेंडमेंट्स in Nehru committee report. Nehru rejected that proposal. The senior Nehru, Motilal Nehru. Later on, Jinnah wanted to enter into electoral alliance with Congress during 1936-37 election. They refused to accept electoral alliance with Muslim League. Even in post-election, Muslim League was ready to join the provincial government, especially in UP. Muslim League chapter was more interested. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और आजाद ने कंडीशन लगाई, पहले आप रिजाइन करें मुस्लिम लीग से, ज्वाइन कांग्रेस, देन यू आर गोइंग टू बी इंडक्टेड इन मिनिस्ट्रियल पोजीशंस। तो उसमें वो एक है। जहां तक है ना जफरुल्लाह साहब, ये आर्गुमेंट के हर सूरत में बनना ही बनना था पाकिस्तान,
उसमें फिर आप ये भी क्लेम कर सकते हैं डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस भी तो ग्लोबल प्रोसेस है ना, ये कोई एक्सक्लूसिवली इंडिया में तो नहीं हुआ है ना, एशिया और अफ्रीका में हर जगह पे हुआ है। कुछ कंट्रीज ने 45 में इंडिपेंडेंस अचीव की, कुछ ने 46 में, 47 में, कुछ ने 50s में, जो रिमेनिंग कॉलोनीज थी वो 60s में खत्म हो गई। तो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस भी तो ग्लोबल फिनोमिना था। तो लेकिन उसमें हम डिस्काउंट नहीं कर सकते लोकल लीडरशिप की कंट्रीब्यूशंस को, लोकल लीडरशिप की रेजिस्टेंस को, उनकी सैक्रिफाइसेस को और स्ट्रगल को हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। सेम चीज अगर ये इंडियन लीडरशिप पे अप्लाई होती है तो मुस्लिम लीडरशिप पे भी इसको अप्लाई होना चाहिए जफरुल्लाह शहीद साहब, कि ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था। ऑब्वियसली देयर वाज अ डिमांड, देयर वाज अ चैलेंज, और कॉलोनियल विड्रॉल जो है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, तो ये जो ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया है, ऑब्वियसली द इंटरनल सिचुएशन, वहां पे फूड शॉर्टेजेस थी, राशनिंग थी। लेटर ऑन ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ने रिपोर्ट सबमिट की थी कि अगर इफ वी आर गोइंग टू रिटेन द इंडियन कॉलोनी टिल दिसंबर 1947, ब्रिटेन आर गोइंग टू बी बैंकरप्ट। उन्होंने कहा अब ये लायबिलिटी बन गया है। तो वो जो जून 1947 का प्लान था उसको एडवांस करके दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन जून 1940। देयर वाज अ इमीडिएट रिट्रीट ऑफ द ब्रिटिश, एंड जब ये इंपीरियल रिट्रीट्स हुई हैं बहुत सारी जगहों पे सिविल वॉर्स हुई हैं, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं हुई हैं। यहाँ पे पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर करने की कोशिश की गई थी, बट अल्टीमेटली दैट रिजल्टेड इन कम्युनल वायलेंस, क्योंकि आइडेंटिटीज इतनी शार्प हो चुकी थी। तो वो ज़ाहिर है वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा था, तो उसमें अगर ये आप क्रेडिट देते हैं कि डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस अल्टीमेटली गोइंग टू बी हैपेंड, तो लेकिन सिचुएशनल लीडरशिप हर तरफ है। लीडरशिप मोस्ट ऑफ द केसेस सिचुएशनल ही होती है, जो उनको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर लेता है उन सिचुएशंस को, तो वो लीडरशिप रिज्यूम कर लेता है। तो वो मेरे ख्याल में इसका बेनिफिट दोनों साइड की लीडरशिप को भी मिलना चाहिए। अगर एक साइड की लीडरशिप सिचुएशनल लीडरशिप है तो दूसरी साइड की लीडरशिप भी सिचुएशनल लीडरशिप भी ही हो सकती है। सर दूसरी साइड के लोग ये भी कहते हैं कि जिन्ना जो था ना वो सिर्फ मुसलमानों का लीडर था, जबकि जो गांधी था ही वाज अ ग्लोबल लीडर। उसकी रीच जो थी, यानी कि जब वो साउथ अफ्रीका में भी था तो लोग तब भी उसको जानते थे। तो जिन्ना को तो यहाँ से इंडो पाकिस्तान से यानी कि बाहर कोई नहीं जानता था ना। तो वो अंडर दी गाइडेंस ऑफ गांधी जॉनसन है वो जिन्ना साहब लीडर बने हैं। जब 1918 के अंदर गुजरात का विजिट किया गांधी ने, तो वो जिन्ना को अपने साथ लेके गए गुजरात में, जो जहाँ पे वो इनके पैदा हुए। वहां पे उनको स्पीच करने का मौका दिया गया, तो लोगों ने पहली दफा जिन्ना को सुना। तो उनको यानी कि एक बड़े मजमे के सामने जब जिन्ना ने स्पीच की तो उनको लोगों को भी पता लगा कि ये भी कोई मिस्टर जिन्ना भी कोई चीज है। उससे पहले यानी कि लोगों को पता नहीं था। तो वो एक साइड ये भी है कि सिर्फ जो लोकल लोग हैं वही जिन्ना को जानते थे, और जो गांधी है उसकी जो आप बुद्धबाज भी देखें या गांधी एज ए सिंबल भी देखें, तो जो वो खाते थे या जो वो पहनते थे, तो उनको यानी कि ग्लोबल ऑडियंस की रीच हासिल थी, जबकि जिन्ना वाज ओनली जो ना कन्फाइंड टू द सब कॉन्टिनेंट। जी जफरुल्ला, मैं इस बात से आपसे एग्री हूँ कि जो ऑब्वियसली वो जो नॉन वायलेंस स्ट्रेटजी है या वो जो नॉन वायलेंस का एलिमेंट पॉलिटिकल एजिटेशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, दैट लार्जली won admiration for Gandhi globally. Globally, Gandhian political strategy was recognized as a unique model. तो अप्रिसिएशन भी है, उसकी फॉलोइंग भी है, बाद की बहुत सारी मूवमेंट्स इंस्पायर्ड विद गांधीयन एजिटेशनल स्टाइल, तो उसमें कंट्रीब्यूशन एंड क्रेडिट गोज टू गांधी, नो डाउट इन इट। लेकिन जहां तक है ना इंडियन पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाने का, मेरा इसमें पर्सनल व्यू थोड़े से, एनी बेसेंट ने एक होम रूल लीग एस्टेब्लिश की थी। गांधी व्हेन लुकिंग फॉर एंट्री इनटू पॉलिटिकल एरिना, कांग्रेस रिफ्यूज दैट एंट्री। इवन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोखले की जो सोसाइटी थी जहां पे गांधी की एक तरह से एडमायरेशन भी थी, दे रिफ्यूज एंट्री टू गांधी। उनकी मीटिंग हुई, गांधी सेंट एप्लीकेशन, उन्होंने दे रेज सीरियस ऑब्जेक्शंस एंड क्वेश्चन ऑन गांधीज एंट्री इनटू इंस्टीट्यूशनल एरिना। उन्होंने कहा जी आप मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट हैं, हम, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया था। दूसरा स्टेज पे जिन्ना बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ होम रूल लीग ऑफ बॉम्बे ब्रांच।
Jinnah invited Gandhi. He was the president, he invited Gandhi, although the Secretary General of that Home Rule League had a serious concerns and grievances. उसने लेटर भी लिखा गांधी को कि आपको हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप होम रूल लीग को ज्वाइन करें, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द क्रीड ऑफ दैट पार्टी. गांधी साहब ने ज्वाइन किया, इमीडिएटली मीटिंग कॉल की और कॉन्स्टिट्यूशन रीड्राफ्ट किया और उसको होम रूल को चेंज कर दिया स्वराज्य सभा में, जिस पे जिन्ना ने बाइकआउट किया. जिन्ना ने और उसके जो सेक्रेटरी जनरल थे और उस वक्त की जो टॉप की लीडरशिप थी, 8-10 जो होम रूल लीग के प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, दे रिजाइन फ्रॉम होम रूल लीग. और ये प्रॉब्ली दैट वाज हैपेंड इन 1918. जहां तक है जी पब्लिक स्पीच करवाने का, तो जिन्ना गेन पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग 1909 जब when he joined as a member of Indian Legislative Council. वहां से जिन्ना की नेम एस्टेब्लिश हुई है एज ए इंडियन नेशनलिस्ट. और जिन्ना एलीट के अंदर वेल एंट्रेंच था. उस वक्त जो स्ट्रक्चर था वो एलिटिस्ट स्ट्रक्चर था. जिन्ना एंजॉयड वेरी गुड रिलेशनशिप विद गोखले. जिन्ना एंजॉयड गुड रिलेशनशिप विद दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी. ये 4-5 बड़े लीडर्स थे इंडिया के. उनके साथ बड़े पर्सनल रिलेशनशिप पे था जिन्ना. तो उस वक्त का जो है, जहां तक है कि वो क्राउड्स को एड्रेस करने वाली बात, probably most of the Indian leaders were not familiar with the crowds before that. बड़ी लिमिटेड सिलेक्टिव गैदरिंग्स होती थी. वो जिसको आप कहते हैं ना ड्राइंग रूम पॉलिटिकल स्टाइल, वो वाला स्टाइल था. बड़ी लिमिटेड एलीट पॉलिटिकल एरिना में ऑपरेट कर रही थी. इवन के पॉलिटिकल पार्टीज की जो एनुअल गैदरिंग्स होती थी, देयर वाज अ लिमिटेड अटेंडेंस. 400-500 2,000 delegates were there to attend these. ये जो mass factor है that entered with Gandhian's entry into politics. और गांधी एक तरह से आउटसाइडर और पैराफ्रीज से आके उसने सेंट्रल लीडरशिप को कैप्चर किया है, लार्जली ड्यू टू हिज नॉवेल्स टेक्निक और जो सिचुएशंस क्रिएट हुई, खिलाफत मूवमेंट, रूलेट एक्ट के अगेंस्ट एजिटेशन, दैट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी कि वो जो मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का इंक्रीमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन एडवांस का, वो जब रूलेट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, वो तो रिवर्सल थी. उनका मॉडल फेल हो रहा था. कोलैबोरेशन कोऑपरेशन मॉडल इज नॉट गोइंग टू सर्व. ब्रिटिश वर नॉट रेडी टू ऑनर देयर प्लेजेस. तो वो राइजिंग डिमांड थी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और ब्रिटिश सिस्टम फेल टू रिस्पॉन्ड दोस रेवोल्यूशन ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशन. और उसमें जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, गांधी बिकम बेनिफिशियरी ऑफ दैट वैक्यूम. उसने कहा ओके जी, हम मिलिटरीली चैलेंज नहीं करने जा रहे, नॉन वायलेंस स्ट्रगल ऑफर करते हैं और कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि कोलैबोरेटर्स ऑफ राज लॉस्ट पब्लिक फेस. लोग अब क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको. उसमें उसने कहा ओके, एक मिडल वे है जिसमें कोई मिलिट्री स्ट्रगल नहीं होने जा रही, रिवोल्ट नहीं होने जा रही. वी आर गोइंग टू अडॉप्ट नॉन वायलेंट पाथ, लेकिन वी आर नो मोर गोइंग टू एक्सटेंड कोऑपरेशन, वी आर नो मोर गोइंग टू बिकम लॉयल. कि ब्रिटिश अपने ऑनर्स जो प्लेजेस है ऑनर नहीं कर रहे, और वो इंडियंस को जो इंडियंस की डिमांड है एट दैट टाइम, सेल्फ रूल या होम रूल की डिमांड थी, वो नहीं देने को तैयार थे. सेंटर में उन्होंने कोई पावर शेयर नहीं की, प्रोविंशियलाइज कर दिया. वो भी एक खैर एक ब्रिटिश स्ट्रेटजी थी, जो प्रोविंशियलाइज किया गया पॉलिटिक्स को. मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर्स क्रिएट कर दो इंडिया में. इंडिया में पॉलिटिकल पावर को डिवाइड कर दो. प्रोविंशियल लीडरशिप होगी, उनके अपने डिफरेंसेस होंगे, उनके अपने इश्यूज होंगे. पंजाब की लीडरशिप वर नॉट ऑन द सेम पाथ विद द बंगाल्स लीडरशिप. तो खैर उसमें भी वो एक था, लेकिन उसमें मेरे साजिद साहब इरम का क्वेश्चन ले लें. अब इरम काफी देर से वेट कर रहे हैं. जी इरम. थैंक यू वेरी मच. जी इरम. जी सर, थैंक सर. बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, अगर आप कहें तो मैं एक दो शेयर कर लूं. मैं वैसे खुद ज्यादा कंफ्यूज तो मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर सकती. मैं शेयर कर देना कम से कम, मुझे थोड़ा सा दिल का गुबार हल्का हो जाएगा शेयर करने से. तो सर एक तो शफीक साहब की, जी सर, शफीक साहब ने जो बात की थी उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात तो ये है कि अगर हम जिन्ना के पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या 11 अगस्त वाली स्पीच के
हवाले से अगर हम डिटरमिन करें जिन्ना का पाकिस्तान, तो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा क्या? और दूसरी बात सर, लाइफस्टाइल का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम यहाँ बैठ के अरबों के जुब्बे तो नहीं ना पहन सकते, हमने अपने हिसाब से ही जो है वो कपड़े वपड़े पहनने होते हैं, हमारा अपना लाइफस्टाइल होता है। दूसरी बात ये सर कि जब ये किसी ने बात की कि कायदे आजम जो है वो ओकेजनल लीडरशिप लीडर के तौर पे सामने आए, तो जो इकबाल ने लेटर लिखे थे, 13 खत लिखे थे मोहम्मद अली जिन्ना को जब वो इंग्लैंड चले गए थे, तो उसको हम कैसे जो है एक्सप्लेन करेंगे? उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था कि आप आके जो है लीड करें। फिर एक और कंफ्यूजन सर मुझे ये है कि जब गांधी साउथ अफ्रीका में था, तो उस वक्त उसका सारा जो गेटअप था वो मुख्तलिफ होता था, और इंडिया आते ही उसका जो गेटअप जो है वो मुख्तलिफ, एक नया स्टाइल और सारा कुछ। और ये जो खिलाफत मूवमेंट में जो मौलवियों के थे डिमांड्स थे, वो इतने रैशनल थे, तो गांधी जी ने क्यों उसको सपोर्ट किया? और उसी में हम देखते हैं कि नॉन वायलेंस मूवमेंट थी या माइग्रेशन मूवमेंट थी, जिन्ना ने तो उसकी बड़ी सख्त मुखालफत की थी नागपुर के जलसे में जब ये सारा कुछ हुआ था 1920 में। तो सर इसको हम कैसे किस तनाजुर में रखेंगे इन सारी बातों को? थैंक यू। साजिद साहब, आपके लिए 4-5 सवाल आ गए हैं, तो अब आप ये इनको 4-5 सवाल है और इन सारी चीजों पे मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। तो चल और हमारी पूरी शायद नेशन ही कंफ्यूज है इन बहुत सारी चीजों पे। अच्छा, एक तो खैर ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, दे आर पॉलिटिकल लीडर, दे वर परसीविंग पावर। एक तो उनको कोई ऐसे लीडर्स के तौर पे मेरे ख्याल में हम जब हम पोर्ट्रे करते हैं ना कि बड़े कोई मॉरल और पता नहीं एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो गांधी साहब की ट्रांजिशंस हैं या जिन्ना साहब की ट्रांजिशंस हैं, लार्जली गोइंग टू बी डिटरमाइंड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल रोल्स, कि उन्होंने पॉलिटिकल रोल किस किस्म का है। जहाँ तक ड्रेसिंग का इशू है, ऑब्वियसली वो ड्रेसिंग भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड ड्रेसिंग थी। वहां पे गुजराती आइडेंटिटी की असर्शन थी। वेस्टर्न ड्रेसेस पहनता रहा है गांधी, ये नहीं कि वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहने या कोई फेमिलियर नहीं था। स्टेट एट लंदन का ट्रेंड ब्रेस्टर है, ऑब्वियसली वेस्टर्न स्टाइल ऑफ वही ड्रेसिंग से किया था। लेकिन गुजराती ड्रेसिंग वाज ऑप्टेड एज अ सिंबल ऑफ इंडियन आइडेंटिटी इन केस ऑफ साउथ अफ्रीका। लेटर ऑन व्हेन ही केम बैक देयर, इसको ही विजिटेड चंपारण में सत्याग्रह हुई, वहां पे उसने ये जो धोती वाला ड्रेस है और ये जो है, और दूसरा अहमदाबाद में जब साबरमती आश्रम एस्टेब्लिश किया गया, अहमदाबाद वाज द सेंटर ऑफ द स्पिनिंग व्हील, और वहां पे ये जो कॉटेज इंडस्ट्री, जो कॉटन वीविंग इंडस्ट्री थी, दैट वाज द सेंटर। अब ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, मॉडर्न इंडस्ट्री ने उस पूरी कॉटेज इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। गांधी वांटेड द रिवाइवल ऑफ दैट कॉटेज इंडस्ट्री। तो उसमें यस ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स ने उसको पैटर्नाइज और सपोर्ट भी एक्सटेंड की है कि वो अगर उस कॉटेज इंडस्ट्री को रिवाइव करने जा रहा है तो उसमें लोगों का बिजनेस इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व था। तो और जहां तक है ये धोती वाला, ये सिमुलेशन का प्रोसेस है। लीडरशिप, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, ड्रेसिंग कोड, इसमें अपने आप को सिमुलेट करना चाहते होते हैं। जिनको लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं ना, कि वो उनके अंदर वो एक रियलाइजेशन हो। ऑब्वियसली जिस तरह का सिंपल ड्रेस, शॉर्ट ड्रेस यूज किया गया था, उसमें बुनियादी तौर पे दैट वाज द ड्रेस कोड ऑफ द फार्मर्स, द वर्कर्स, लेबरर्स, जो फील्ड्स में काम कर रहे थे। आमतौर पर पंजाब में अब भी इस तरह की धोती पहन के लोग फील्ड्स में काम करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये पुअर्स का ड्रेस था, और पुअर्स के साथ सिमुलेट करके मैंने आपको कहा है कि वो टॉप से इंटर नहीं हो रहा, बॉटम से इंटर हो रहा है, और बॉटम में अपनी स्पोर्ट बेस क्रिएट करना चाहता है। तो उसमें he traveled on bullock carts, he stayed in the houses of the peasants and workers, he talked them into their language, उनकी concerns क्या है, क्रॉप को क्या इशू है, लोकल टैक्सेशन का क्या इशू है जी, लेबरर्स के क्या इश्यूज हैं। अहमदाबाद की मिल के वर्कर्स के साथ स्ट्राइक पे चला जाता है। चंपारण में जाके वो नेल टैक्स जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है। कहीं पे वो जो टी फार्मर्स हैं उनके साथ सॉलिडेरिटी एक्सटेंड करता है। तो ही टॉक्स टू देम देयर, वो उनकी लैंग्वेज में, उनकी इडियम्स में उनसे बात करके सिमुलेशन, और वो एक जो इंटीमेसी का बॉन्ड क्रिएट करना जरूरी था वो उसमें। तो ड्रेसिंग, जैसे जिन्ना साहब
कि ड्रेसिंग में ट्रांजिशंस आई हैं, चेंज आई हैं, पब्लिक अटायर में उन्होंने शेरवानी या वो इवन उर्दू लैंग्वेज वाज अडॉप्टेड. Initially Gandhi insisted on the adoption of the Gujarati language. वो ज्यादातर गुजराती के पहली मीटिंग में जब जिन्ना ने रिसेप्शन ऑफर की गुजरातीज ने बम्बई में, तो गांधी साहब गुजराती ड्रेस में आए और गुजराती में स्पीच डिलीवर की और जिन्ना और बाकी सारे लोगों पे हल्का सा वो तंज भी किया कि कैसी गुजराती गैदरिंग है, यहाँ पे सारे लोग वेस्टर्न ड्रेसेस में हैं और मुझे अंग्रेजी लैंग्वेज में एड्रेस करने के लिए मुझे वेलकम जो एड्रेस है जिन्ना ने अंग्रेजी लैंग्वेज दी है, गुजराती की गैदरिंग थी, आप गुजराती आइडेंटिटी के सर्जन करते. तो वो खासी कंफ्यूज थी. बनारस हिंदू कॉलेज को जब यूनिवर्सिटी के स्टेटस दिए गए, गांधी वाज इनवाइटेड टू एड्रेस दैट गैदरिंग. Mrs. Annie Besant was and Madan Mohan Malviya were behind that idea. वहाँ पे और Vaisrai was there. Gandhi sahab appeared and बहुत सारे rulers of state were there. Gandhi appeared at the dais और she started criticizing the use of, और हालांकि खुद इंग्लिश में बात की वहाँ पे, लेकिन started criticizing. उसने कहा जी ये क्या हो रहा है जी, ये किस किस्म की गैदरिंग है, ना हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ना हमारा नेशनल ड्रेस है. तो गांधी इस मामले में खासा उसमें पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की. और जहां तक अलायंस का ताल्लुक है कि एक रिलीजियस एजेंडा पे गांधी ने बहुत ज्यादा रिलीजियस इडियम्स और सिंबल्स इंटर किए पॉलिटिकल एरिना में, और मोस्ट ऑफ दीज रिलीजियस सिंबल्स हैं स्वराज, religious connotation है. Even Swaraj was frequently exchanged with Ram Raj. राम राज की टर्म को आप अंडरस्टैंड कर सकते, प्योरली हिंदू मिथोलॉजी से ड्राइव की हुई टर्म है. सत्याग्रह की फाउंडेशंस भी वो एक हिंदू मिथोलॉजी में है. तो अहिंसा का कॉन्सेप्ट या नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट रूटेड इन हिंदूज मिथोलॉजी. तो लेकिन मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की गई. गांधीज एजेंडा वाज पॉलिटिकल इन नेचर. खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट की डिमांड ही खासी ऐसी चीज थी कि टर्किश पॉपुलेशन डोंट वांट टू रिस्टोर रिटेन दैट इंस्टीट्यूशन. हम इंसिस्ट कर रहे थे इसको, और उसमें अल्टीमेटली खिलाफत मूवमेंट वाज कंसीडर्ड एज अ फील्ड मूवमेंट. लेकिन इसमें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुई है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का लेवल इंक्रीज हुआ है, न्यू क्लासेस वर मोबिलाइज्ड, दे एंटर्ड इन पॉलिटिकल एरिना. तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हुए हैं. तो गांधी का जो एजेंडा था कि मैसेज को मोबिलाइज करने वाला, एक तो वो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी इन इंडिया में रिलीजियस इडियम्स और सिंबल्स के बगैर शायद आप पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना यहाँ पे अपहिल टास्क है. ये जो डेलिकेट कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, लिबर्टीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको कॉमन मैन को अंडरस्टैंड करना ही बड़ा मुश्किल काम है. वो किसी एक ऐसे थीम के अंडर जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसको प्रमोट कर सकें और पॉपुलर कंसेप्शन में आ सके, लोग उससे अपने आप को रिलेट कर सकें. तो उसमें इंडिया के केस में अक्रॉस द बोर्ड, चाहे मुस्लिम लीग की लीडरशिप हो चाहे कांग्रेस की लीडरशिप हो, they largely exploited religious idioms and symbols for political mobilization. नेहरू सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड था, वो कहता था इंडिया प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. लेकिन उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की भी रिसेप्शन थी, नो डाउट इकोनॉमिक इश्यूज आर अनदर इंपॉर्टेंट इश्यूज. लेकिन गांधी largely remained the crowd puller throughout the Indian struggle. लार्जली उसमें महात्मा का जो कंसेप्शन है, ये जो है वो उसमें रिलीजियस एलिमेंट भी था, स्पिरिचुअलिज्म, और या वो जो भी गांधी ने उसमें जो भी चीजें थी उसमें वो एक कॉम्बिनेशन था लीडरशिप का. तो वो मैसेज को ज्यादा अट्रैक्ट करता था, वो ज्यादा क्रिज्मेटिक लीडर था एज कंपेयर टू द अदर लीडर्स. तो मेरे ख्याल में ये जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं. साजिद साहब, अगर आप मुझे अलाउ करें, क्योंकि प्रेजेंटर तो आप हैं, एक छोटा सा जुमला मैं आपकी इस गुफ्तगू के साथ ऐड करना चाह रहा हूँ. जी जी प्लीज प्लीज. देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये जो थोड़ा सा शायद हम लीडर्स को क्रिटिकली देखते हैं इस तरह की, जब वो एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं जो मैसेज का जो कल्चर है उसके साथ, तो ये मेरा ख्याल है ये ह्यूमन नेचर है. हमारे साथ भी कोई अगर एसोसिएट करेगा ना हमारी लैंग्वेज में, हमारे ड्रेस कोड के साथ, तो हमें अच्छा लगेगा, हम उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे. इसमें मेरा ख्याल है कि कोई खराबी सच नहीं है इस बात में. और लीडरशिप पे कंपल्शन है सर. उन्होंने बेसिकली वो जो लोगों के अंदर एक सेंस क्रिएट, सिमुलेशन क्रिएट करनी होती है, वी बिलोंग्स टू यू.
वो जो टुगेदरनेस की एक सेंस डेवलप करनी है वो किसी आइडेंटिटी मार्कर के थ्रू ही होगी ना। ऐसे ही है। वो चाहे लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी मार्कर हो, वो ड्रेस कोड के थ्रू हो, या वो जो रेटोरिक क्रिएट कर रहे हैं, कहीं कॉमन ग्राउंड्स क्रिएट करेंगे तो दे पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर लीडरशिप। अगर वो टुगेदरनेस का कोई कॉन्सेप्ट होगा तो। और दूसरी बात जो आपकी बात से बार बार एक थीम आ रही है ना कि मोबिलाइजेशन के लिए सब कॉन्टिनेंट में रिलीजन को यूज किया गया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है हिस्टोरिकली। इसमें अगर हम डिफरेंट लीडर्स को देखें जो पर्सनल व्यूज में बड़े सेकुलर थे, बड़े लिबरल थे, आप किसी को भी ले लें, बाद वाले लीडर्स को ले लें, भुट्टो साहब को ले लें, बेनजीर को ले लें, ये यहाँ की मतलब काइंड ऑफ कल्चरल सोशल आई थिंक कंपल्शन है कि आप लोगों को मोबिलाइज करने के लिए रिलीजियस जो सिंबलिज्म है उसको यूज करते हैं। हाँ, ये डिबेटेबल रहेगा कि इसके नुकसानात कितने हुए, क्या हुए, ये सारी डिबेट तो ठीक है, बिल्कुल है। लेकिन ये है कि वो बात आपकी सही है कि जो आइडियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, रूल ऑफ लॉ के, उनके साथ एसोसिएट करने में एक मैं पैरामीटर देता हूं सोचने के लिए, वो ये है कि अपनी टीचर्स की एसोसिएशंस को देख लें, लॉयर्स की एसोसिएशन को देख लें, किसी भी प्रोफेशनल हाईली एजुकेटेड ग्रुप की एसोसिएशन को आप देख लें, वो कितना मैनिफेस्टो बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और कितनी जो रिटोरिक है वो इन्हीं मतलब कुछ ना कुछ कल्चरल सिंबलिज्म के साथ ही वो करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में टीचर पॉलिटिक्स में नहीं देखा कि उन्होंने पॉलिटिक्स इस बुनियाद पे की हो कि हमारे ये इश्यूज हैं, इस पे पॉलिटिक्स करते हैं। आपने भी देखा है, ये आपको पता है इस बात का। तो ये हमारी कुछ कंपल्शंस भी हैं और ये मेरा ख्याल है थोड़ा लाइसेंस लीडर्स को भी देना चाहिए, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करते हैं जी। और स्पेशली जहाँ पे मैथ लिटरेसी हो, मैसेज आर लार्जली इलिटरेट और उनकी मोबिलाइजेशन रिक्वायर्ड है। पब्लिक लेजिटिमेसी क्रिएट करनी है आपने। अब मोबिलाइज करने के लिए ऑब्वियसली कोई कैची स्लोगन क्रिएट करेंगे। अब भुट्टो साहब ने कोई सोशलिज्म तो लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की थी। रोटी कपड़ा मकान और समझाने की कोशिश करते भी तो शायद भुट्टो साहब ज्यादा बेहतर तौर पे समझा भी ना पाते। इसलिए शायद एडिलॉग्स ज्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकते। जे रहीम बेहतर तौर पे समझा सकता था, डॉक्टर मुबशिर ज्यादा बेहतर तौर पे समझा सकता था, शेख रशीद बेहतर तौर पे समझा सकता था, या मलिक मिराज मोहम्मद खान बेहतर तौर पे समझा सकते थे। अच्छा, शेख रशीद की आपको थोड़ी वजाहत करनी पड़ेगी, किस शेख रशीद की बात कर रहे हैं? शेख मोहम्मद रशीद जी, माफ करें जी, शेख रशीद अहमद लाल हवेली वालों से। मतलब लाल हवेली वाले तो बिल्कुल नहीं है ये, मतलब मैं जो हमारी यंगर जनरेशन है, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ में, उनके लिए क्या थोड़ी वजाहत कर इन शेख रशीद की बात नहीं हो रही, वो और थे। फर्जंदे पाकिस्तान की नहीं है, फर्जंदे लाल हवेली की बात नहीं हो रही। अच्छा, कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया और वो नजर भी आ रहे हैं, तो कुरैशी साहब से कमेंट या क्वेश्चन ले लेते हैं जबरदस्ती। जी कुरैशी इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में जो गुफ्तगू चल रही है ना, वो खासी मशहूर कुन गुफ्तगू है और बड़े अरसे के बाद मैं एक ऐसी महफिल देख रहा हूँ जिसके अंदर जो है ना वो खुल के बात की जा रही है। तो मैं ज्वाइन करने जल्दी बड़ा डर डर के कर रहे हैं आप, ये ना समझे कि हमको बहुत ही वो ये भी बहुत है सर, इतनी भी कर लें तो बहुत है। मेरे ध्यान में एक क्वेश्चन था छोटा सा। हम आमतौर पे कंपैरिजन करते हैं ना, जैसे गांधी का और जिन्ना का हम कंपैरिजन करते हैं, भुट्टो साहब का और शेख मुजीबुर रहमान का कंपैरिजन करते हैं। और आपने कहा कि जी सिचुएशनल लीडरशिप डेवलप होती है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। तो सिचुएशन या तो डेवलप हो जाती है या डेवलप कर दी जाती है। तो आप फोर सी एज अ हिस्ट्री के उस्ताद के और एज ए हिस्टोरियन आप कहाँ देखते हैं कि कल को जब हमें खान साहब का कंपैरिजन करना पड़ेगा तो हम किसके साथ करेंगे? ये एक छोटा सा सवाल है बस। एक इंटरेस्टिंग है आपने वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस में खान साहब को हम किससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को तो हम कुछ हद तक कंपैरेटिव एनालिसिस में ला सकते थे। तो खान साहब की जो पोजीशन है वो खासी डिवाइडेड और डाइवर्स है। तो
शायद मैं तो इसका आंसर ना कर पाऊंगी। इस पे साजिद साहब आप एक बड़ी सेफ पोजीशन ले सकते हैं। जी 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 जी। हिस्टोरियंस जो है वो आफ्टर 30 ईयर इस तरह का रिसर्च और काम करते हैं। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पे वो ज्यादा जो है वो ज्यादा होता है, हम बाद में कोई ना कोई क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि बाद में सेफ भी होते हैं और एविडेंस भी काफी आ चुका होता है। एग्जैक्टली सर, ये डिसाइड जो है ना ये कोई 20, 25, 30 साल के बाद ही होगा। अब असल में वही बात है कि जी चीजें कुछ इस तरह से हैं पिछले 2-3 साल में, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। अभी जाती तौर पे मैं ये देखता हूँ कि जनाब जितने भी हर जगह पे वो हैं आर्टिकल्स, शफीक साहब सॉरी, वेरी सॉरी, मैं एक अनाउंसमेंट कर लूं? जी जी जरूर जरूर जरूर। अनाउंसमेंट ये है कि ऑफिशियली हमारा सेशन जो है वो खत्म हो चुका है। अब जो दोस्त बैठे हैं वो अपनी मर्जी से, अपनी दिलचस्पी से इसको जितनी देर चाहें जारी रख सकते हैं। हाँ, जब तुम जाना है ना दस देना कि यार मैं ठीक हो जी, आप जारी रखें प्लीज। सॉरी फॉर मैं क्या ये रहा था कि एक तो ये होता है ना कि कुछ चीजें, एक तो खैर जो शुरुआत है वही वैसी थी। दूसरा, दुनिया में अभी खासतौर पे पिछले जो 1 साल से चीजें जितनी अपसेट हुई हैं तकरीबन हर जगह पे। अगर कहीं गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं कि वो हर चीज सब्सिडाइज कर सके तो वो अलग कहानी है, वरना महंगाई पे जो मैं चीजें देख रहा हूँ पिछले कोई 1.5-2 साल से, यकीन करें इस साल में अमेरिका में इतनी महंगाई हुई है कि जो पेट्रोल जो है, जो गैस, वो $2 का जो गैलन था अब वो $3.25 का गैलन है। इसी तरह से जो मतलब इवन, हालांकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी कोशिश करती है कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो महंगी ना हो, बाकी चीज़ें जो मर्जी चलती रहें, लेकिन इवन जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे नॉर्मली लोग यही है कि जनाब ज़ाहिर है चिकन या बीफ या जो भी, तो उन चीज़ों की जो हैं प्राइसेस वो डबल से ज़्यादा हो गई हैं पिछले 1.5 साल में। और फिर जब मैं इन सारी चीज़ों को उस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ और फिर आजकल जी जो कमेंटरी है वो पढ़ता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि यार कुछ तो जाहिर है, इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह से चल रही हैं, जो कंसिस्टेंसी नहीं है वो तो है ही, लेकिन जो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन है वो एक इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो एज एन आउटसाइडर लगता है कि यार जो चीज़ें अभी भी जैसे हैं, ज़ाहिर है मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं, लोगों को ज़ाहिर है बेहतर पता होगा, लेकिन अगर आप प्राइस इंडेक्स जो लोग बताते हैं उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद वही बात है कि जनाब अभी तक ये 3-3.25 साल जब भी हुए कोई स्मूथ टाइम तो उसमें आया ही नहीं। यानी किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी लीडर के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है। तो शायद अगर तो वो टाइम मिलेगा तो शायद कंपैरिजन होंगे, और अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर ये जो कंपैरिजन है ये शायद असगर खान से या इस किस्म की कोई मोहम्मद खान जुन्नेजो, इन लोगों से शायद कोई कंपैरिजन होगा कि जिन लोगों ने बस एक दफ़ा आए और उसके बाद डिसअपीयर हो गए। और अगर लेट्स सी के अगले 10 साल कैसे चीज़ें चलती हैं। जी शायद ये जो शफीक साहब ने रेज किया इस पे मैं थोड़ी गुफ्तगू करूं साजिद साहब? जी जी प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं इसको शफीक साहब, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ। मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चरल परमानेंट फैक्टर्स हैं ना हमारी गवर्नेंस क्राइसिस के, मसलन आप अगर डॉक्टर इशरत हुसैन की किताब को देखें, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, ये जो टर्म है ना द अनगवर्नेबल, ये काफी सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं। पॉलिटिक्स को अगर हम बाइफरकेट करें दो तरह की पॉलिटिक्स में, एक है पॉलिटिक्स ऑफ मैस मोबिलाइजेशन, एक है पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस स्टेट क्राफ्ट के एतबार से। हमारा क्राइसिस ये रहा है कि हमारे तमाम लीडर्स ने, जो पॉपुलर लीडर्स थे, उन्होंने मैस मोबिलाइजेशन की पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी की, लेकिन
जो पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस थी वहां पे आके जब उनका टेस्ट हुआ उसमें फेलियर हुआ। तो ये एक्सेप्शन, इसमें भुट्टो साहब भी नहीं है, बेनजीर भी नहीं है, इसमें नवाज शरीफ भी नहीं है, इसमें मौजूदा जो लीडर हैं हमारे वो भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो हंटिंगटन ने पाकिस्तान इंडिया की स्टडी की थी ना, उसने जो इनिशियल फेज पे उसने अपना थीसिस बिल्ड किया था, उसने बिल्ड किया था एक फैक्टर पे कि कांग्रेस जो थी वो रिलेटिवली ग्रास रूट लेवल पार्टी थी और ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, इसलिए वो जो सिविलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन थी जो पावर की, वो सिविलियन अथॉरिटी को उसको सुपरवाइज करने में वो सक्सेसफुल हुई। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग जो थी उस लेवल की पार्टी नहीं थी, इसलिए अनसक्सेसफुल हुई। मेरी नजर में इसको अगर एक्सटेंड करें इस थीसिस को, तो बाद में आने वाली हुकूमतों के लिए भी यही मसला था कि आप सिविलियन पावर को असर्ट तो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पावर बेस नहीं है। सिविलियन पावर बेस इज ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो आपके पास वो पार्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी वजह से आप अपनी गवर्नेंस को इफेक्टिवली कर सकते हो। तो ये क्राइसिस सबके साथ रहा। ये हाँ, खान साहब के कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स बन गए कि उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, उन्होंने बातें बहुत की थी, उनको इस पे जब जज किया जाएगा तो वो डिफरेंट बात है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की बेसिस पे जज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये बाय एंड लार्ज कंटिन्यूटी है स्टोरी की, इसमें कोई नई कहानी इतनी नजर नहीं आती। मेरा इस पे ये कमेंट है। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, बल्कि पूछना चाहूंगी। सर शफीक, सर मैं पूछ सकती हूँ? जी पूछिए, है कौन? सर मैं किंदा से रामत जी किंदा जी जी। सर आपने जब महंगाई की बात की सर शफीक, तो आपने अमेरिका का रेफरेंस दिया, राइट? तो आपने कहा कि वहाँ पिछले कुछ अरसे में बहुत महंगाई हुई है। तो आया कि वहाँ पर जब महंगाई हुई है तो वहाँ के लोगों की जो इनकम्स हैं वो कांस्टेंट ही रही हैं, हुकूमती बुनियादों पर लोगों की इनकम्स क्या इंक्रीज नहीं हुई है? क्योंकि जब हम लोग डेवलप्ड नेशंस को अंडर डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करते हैं, तो अगर पाकिस्तान का हम रेफरेंस लें तो यहाँ पर जब महंगाई होती है तो लोगों की इनकम उस लिहाज से इंक्रीज नहीं होती है। तो फिर हम एक कंपैरिजन तो पहली स्टेज पे बनता ही नहीं है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि वहाँ ऐसा ही रहता है कि लोगों की इनकम इंक्रीज नहीं होती? क्योंकि जब महंगाई की शरह बढ़ती है तो एक आम लेमैन का या एक जो मिडिल मैन है उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये जो बात है, जहाँ तक बात है लोगों की, तो यकीन करें जब यहाँ पे कोविड आया तो लोगों के एज फार एज जो उनकी सैलरीज और वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे लोगों ने पे कट एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। यानी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जो प्राइवेट सेक्टर, फ़र्ज़ करें जो आपका सैलरी के बाद जो आपकी पेंशन की तरफ पैसे जाते थे, उन्होंने कहा जी नहीं जा रहे, दैट्स इट, सो कट लगे। सो लोगों की जो उस हवाले से वो थी वो तो कट लगे। जहाँ तक बात है गवर्नमेंट की, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है कोविड के दिनों में उन्होंने वो तमाम लोग जो नौकरियों से या जिनकी जॉब्स चली गई थी उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट फंड था वो उन्होंने बढ़ा दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट फंड। लेकिन जहाँ तक बात है सैलरी रेज की कि जी महंगाई की वजह से देयर इज़ नो सच थिंग, तो उस हवाले से ये है कि जाहिर है कि चीज़ें लोगों के लिए मुश्किल हुई हैं और वही बात है कि देन यू हैव टू मेक चॉइसेस कि जी किस चीज़ की ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो अगर आप कि जाहिर है कि जिन लोगों के पहले जो बाहर फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट पे जाके चीज़ें खा लेते थे दे कैन डू इट, लेकिन अगर किसी बंदे ने अपना जो है वो जिसने कुछ पैसे थे कि जनाब मैंने अपना घर एक्सटेंड करना है या तो यकीन करें लोगों के जो थे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट दे आर प्रीटी मच ब्लॉक्ड। तो उस हवाले से वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी ऑटोमेटिकली सैलरीज बढ़ जाएंगी, नो सच थिंग। तो महंगाई का जो असर है वो है। सही। वैसे तो सर ऐसा होता है ना कि हर साल हर जगह दुनिया में, अगर कोविड से पहले भी महंगाई होती रही है और हर जगह जो है ना इनकम्स इंक्रीज होती हैं। तो बस इसी चीज के हवाले से मुझे पूछना था। बहुत शुक्रिया सर। शायद सर जी अब बेसिकली महंगाई तो बहुत बड़ी है। यहाँ पे नॉर्मली ये है यहाँ पे भी
जब मैं ओमान में था तो वहाँ पे भी नॉर्मली वो 2 से 3% जो है ना इन्फ्लेशन के हवाले से लोगों की जो सैलरीज बढ़ती हैं वो 2 से 3% बढ़ती हैं, जो नॉर्मल जो रेंज है। हाँ, जो एक्सेप्शनल लोग हैं ज़ाहिर या जिनकी परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे ज़्यादा भी बढ़ती होंगी, बट एवरेज इज 2 to 3%। तो वो बल्कि पिछले साल तो बहुत सारे लोगों की वो भी नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा जी कोविड की वजह से बिजनेस खराब है, सो देयर इज नो रेज। तो बहुत सारे मतलब यूनिवर्सिटीज थोड़ी बेहतर हैं, तो आई डिड गेट माई रेज, वही जो भी 2-3% होती है, लेकिन बाकी हर जगह पे नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि जी तेल के बढ़ने से हर चीज की कीमत नहीं बढ़ती, कुछ चीजों की बढ़ती है, लेकिन ऑफ कोर्स फर्क तो पड़ता है। एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। जो चीजें फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की जो है चीजें वो एटलीस्ट 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गई हैं। इवन फूड आइटम्स जो लोग कहते थे कि यार ये तो बहुत सब्सिडाइज है, वहां पे भी चीजें, और अभी तक जो सप्लाई चेन है क्योंकि वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हुई, तो इसलिए वो चीज़ें चल रही हैं। और पाकिस्तान में भी अगर आपने चीज़ें बाहर से मंगवानी है, फॉर एग्जांपल तेल जिस तरह से है, अनफॉर्चुनेटली ये फिनोमेना मुझे अभी जब पाकिस्तान में था तब भी समझ नहीं आया, अभी भी नहीं आता कि अगर तेल थोड़ा महंगा होता है तो उससे हर चीज़ की कीमत उसी परसेंटेज से कैसे बढ़ जाती है। बट अगेन शायद साहब ने बड़ी बेहतर बात की कि यार हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो तो हैं, और इंस्टीट्यूशंस और पावर्स दे आर नॉट फंक्शनिंग द वे दे शुड बी। लेकिन ये जो महंगाई है, दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना दीस डेज एटलीस्ट। और ये सिर्फ मेरी ज़ाती राय है, ये बिल्कुल गलत भी हो सकती है लोगों के पर्सपेक्टिव से, या उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं जहाँ पे उनकी हर चीज़ डॉलर से पैक्ड है, तो जितनी चीज़ कहीं बाहर महंगी हुई होगी उतनी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे ओमान में था मैं तो 50 लाख लोग हैं टोटल, 5 मिलियन पॉपुलेशन है, तो अगर उन सब की जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देना चाहे तो भी प्रॉब्लम नहीं होता। इतने लोगों के लिए गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, लेकिन 22 करोड़ आवाम के लिए इतनी बड़ी सब्सिडीज पॉसिबल नहीं होती। साजिद साहब आप हैं या जी जी जी, मैं आपको सुन रहा था ऑब्वियसली। मैं उसमें और दूसरा सर ये भी फाइनेंशियल क्वेश्चन स्टेट्स के पास कितना अवेलेबल है ना, कितनी साउंड इकोनॉमीज हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स की, वो भी लार्जली डिटरमिन करती है कि वो स्टेट किस तरह इस तरह की सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में आ सकती है। जी अच्छा साजिद साहब, ये एक जो बात पहले भी थोड़ी सी हुई जी जी, गांधी और जिन्ना का लोग कंपैरिजन करते हैं और मतलब चीजें होती हैं, लेकिन अभी भी जो ग्लोबली है, मतलब ग्लोबल लेवल पे भी मेरा ये ख्याल है कि जिन्ना साहब को वो रिकग्निशन नहीं मिली जो शायद मिलनी चाहिए थी। और अगेन मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल बायस भी हो सकता है, मुझे पढ़ा है इस तरह से क्या है, और लेकिन क्या वजह है कि जनाब ये सारी चीजों के बावजूद जो गांधी की ग्लोबल अपील है वो एज अ लीडर, अगर आप 2 या 3 पॉइंट्स में आपके अच्छा, ख्याल में क्या है एक कि तो सर बेसिकली 2 चीजों पे जिन्ना को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एक ऑब्वियसली ये जो मुस्लिम नेशनलिज्म है जो कि रूटेड है एक रिलीजियस आइडेंटिटी में, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को एक तरह से टेरिटोरियल नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको एक तरह से चैलेंज के तौर पे आया था। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा शायद ग्लोबल ऑडियंस के लिए वो मुश्किल था। दूसरा, वो जो दूसरी तरफ की क्रिटिक्स थे कि ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की एक्सटेंशन में स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिएट की गई और अल्टीमेटली वो जो
ग्रेट गेम के एजेंडा को सर्व करने के लिए शायद ये स्टेट क्रिएट की गई है। तो उसमें से भी ऑब्वियसली जिन्ना का थोड़ा सा इमेज फर्दर हुआ। दूसरा, जिन्ना वाज लार्जली प्रोजेक्टेड डिपिक्टेड एज अ कम्युनलिस्ट, कि वो कम्युनलिस्ट थे, उन्होंने कम्युनल टेंशंस को इंक्रीज किया और फिर वस काइंड ऑफ दी वायलेंस हुई है, कम्युनल वायलेंस, तो उसका भी ब्लेम कहीं ना कहीं जिन्ना पे शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है। जो कम्युनल आइडेंटिटीज शार्पन हुई हैं वो लार्जली मुस्लिम सेपरेटिज्म या मुस्लिम नेशनलिज्म की इमर्जेंस की वजह से कम्युनल आइडेंटिटीज शार्पन हुई, तो वो भी फैक्टर्स बने। दूसरी स्टेज पे जो एक्डेमिया साइड है या जो एकेडमिक्स हैं, उसमें जो इंडियंस की प्रेजेंस है, दे आर लार्जली गोइंग टू बी डोमिनेट। और जो पाकिस्तानी साइड के एकेडमिशियंस भी हैं, वो उनका भी प्रॉब्लम ये है कि वो ज़ाहिर ऑब्वियसली मोस्ट बिकम द लिबरल सेकुलर, और वो जिन्ना की जो लोकल यहाँ पे रिसेप्शन है, जिस जिन्ना की आप बात कर रहे हैं और जिस जिन्ना को, वो अदर साइड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन की तरफ चले जाते हैं। दे बिकम देमसेल्व्स क्रिटिक्स ऑफ जिन्ना, कि वो जिन्ना की ओनरशिप उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से शायद पाकिस्तानी नेशनल को लेनी चाहिए। तो वो जो ज़्यादातर जो डिबेट्स में है, दे लार्जली borrowed फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिबेट्स। तो ये मेरे ख्याल इसमें और भी इंटरप्रिटेशंस ऐड की जा सकती हैं, लेकिन ये जो 3-4 हैं कि जिन्ना साहब नेगेटिवली डिपिक्टेड लार्जली, लेकिन वो क्योंकि मुस्लिम एक बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन था, मार्जिनलाइज थे, अंडर डेवलप्ड थे, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उनका भी राइट था, और किसी भी आसिमेट्रिकल रिलेशनशिप में थे। एक कम्युनिटी ज़्यादा एडवांस डेवलप, ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस कम्युनिटी थी, तो उसमें ऑब्वियसली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उन्होंने सेपरेटिस्ट पाथ ऑप्ट की हैं, लेकिन शायद उस तरह से प्रोजेक्शन नहीं हो सकी है। तो एक रीजन मेरे ख्याल में ये भी है। अच्छा, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहा करता था, तो वहां पे एक बुजुर्ग रहा करते थे, शाकिर रिजवानी साहब। तो ये जो शाकिर रिजवानी साहब हैं, ये मतलब शादी वादी उन्होंने नहीं की थी, उनकी कोई पर्सनल कोई स्टोरी थी जो मतलब उन्होंने मेरे से शेयर भी की। उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब का नाम था, बल्कि किताब का नाम है पार्टीशन वाज नॉट द आंसर। अच्छा, वो किताब पाकिस्तान में तो नहीं छपी, छपनी भी नहीं थी जिस तरह के हमारे हालात हैं। तो उन्होंने उस किताब में मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली, वो जो बंदा था शाकिर रिजवानी, पाकिस्तान बनने से पहले कोई कबीर घराने के हिसाब थे, लखनऊ से, पायलट वायलट की ट्रेनिंग भी थी, कोई अपना वो मतलब जहाज वहाज भी कभी कभी उड़ा लिया करते थे। तो ये नहीं था कि मतलब बिल्कुल कोई अनपढ़ आदमी थे। उन्होंने मैथमेटिकली उन्होंने कहा था, यार देखेंगे जो पॉपुलेशन का डिफरेंस है और जो चीज़ें हैं उसके हवाले से, मसलन उस जमाने में वो ये कहा करते थे, लेट 90s में वो कहते थे, यार अभी आप देख लें पॉपुलेशन के क्या हालात हैं, आप देखें पाकिस्तान में कितने मुसलमान हैं, बांग्लादेश में कितने मुसलमान हैं, इंडिया में कितने मुसलमान हैं, और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी मिलाएं, तो डू यू थिंक कि इतने जो हैं मुसलमान, इनको उसी लेवल पे इतनी बड़ी परसेंटेज को मार्जिनलाइज किया जा सकता है? उसने कहा, जो पाकिस्तान जब हमने बनाया तो हमने ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले हैं ये तो बचा लिए, लेकिन हमने जो एक 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन थी उसको हमने उस एक्सप्लॉयटेशन के लिए छोड़ दिया, अपने आप को बचा लिया, लेकिन वो जो थी 1/3 उसको छोड़ दिया। तो वो ये कहता है कि जिन्ना गॉट इट रॉन्ग देयर। कहता है जिन्ना जो है उसने ये कहा कि यार अगर 3 बंदे कहीं फंसे हों तो वो कहे कि यार चलो 2 जो हैं ये तो निकल जाएं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ये मुसलमान कम्युनिटी सोचती कि यार कोई नहीं 10-20-40 साल ऐसे गुजर ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करना मुश्किल होगा। तो व्हाट ये मतलब ये आपकी उस हवाले से क्या राय है, इस ओपिनियन के हवाले से, कि क्या अगर ये जितने भी मुसलमान हैं अभी
जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, ये सारे के सारे इंडिया में ही होते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस हैं जिसमें मुसलमान मेजोरिटी होती, वहाँ पे इनकी अपनी गवर्नमेंट्स होती। तो क्या जो अभी जो मोदी वाली मार्जिनलाइजेशन चल रही है, क्या आज के ज़माने में वही होती? अब ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल है। मतलब ऑफ कोर्स इस बात पे फतवा बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, तो उम्मीद है फतवा शतवा नहीं लगाएंगे आप मेरे पे कि मैं अच्छा खैर, ये तो वैसे ही हमारी एक्सक्लूसिव सिलेक्टिव गैदरिंग है जी। शफीक साहब। अच्छा, एक तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन की डेमोग्राफी थी इंडिया की, दैट वाज 23 to 24% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मुस्लिम्स वर 23 to 24%, इससे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं थी। अच्छा, ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम व्हिच वाज इंस्टॉल्ड इन इंडिया, ये मेजॉरिटेरियन प्रिंसिपल पे बेस करता है सर, ठीक है। इसमें वो मैथमेटिकली जो मैं गलत इक्वेशन रेफर करूंगा कि 50.1%, जी शायद साहब, अच्छा सॉरी, शायद से फोन पे है, जो इसमें मसलन ये जो मेजॉरिटेरियन प्रिंसिपल है शफीक साहब, इसमें 50.1% इज इक्वल टू 100% एंड 49.9% इज इक्वल टू 0%, ठीक। के जो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी अल्टीमेटली मेजॉरिटेरियन प्रिंसिपल में। अच्छा, मुस्लिम्स की फियर्स ये थे कि वी आर परमानेंट मिनॉरिटी। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम आर गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड इन इंडिया, Muslim remained a minority. They had no chance to form government at center. और सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में ज्यादा कंसर्न था। अच्छा, दूसरी स्टेज पे मुस्लिम्स जैसे लीग की या जिन्ना की जो पूरी पॉलिटिक्स थी उस टाइम पे, वो प्रोविंशियल ऑटोनमीज के बारे में थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, कंसेशंस और प्रोटेक्शंस की पॉलिटिक्स थी। वो मॉडल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट के बाद कोलैप्स कर रहा था, और कांग्रेस लुकिंग फॉर स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट, कांग्रेस इमर्ज एज अ रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द ऑल इंडिया। तो वो जो इंडियनाइजेशन या नेशनलाइजेशन की कांग्रेस की परसेप्शन थी, वो इंडिया को वन नेशन, सॉरी, ये कॉल आ गई थी मुझे। जी कोई शायद भाई कोई इशू नहीं, मैं और शफीक साहब। अच्छा, वो शफीक साहब का क्वेश्चन ये था कि मुस्लिम जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पे प्रोटेक्ट नहीं हो सकते थे यूनाइटेड इंडिया में, और उन्होंने अपने दोस्त और कुलीग की बुक का रेफरेंस